Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, this is Ibrar Bir from London all the way, Senior Vice President Pakistan People's Party Europe. آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ جس سے آپ کو پاکستان میں ہونے والے بڑے بڑے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ سائنٹیفک بڑے پردے میں جو نا چوری ڈاکو کے جو ہے نا وہ سراغ رساں وہ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ایسی چیزیں ایک اکیلا تنہا شخص کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس شخصیت نے وہ ناممکن کو ممکن کر دیا اور ڈٹے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ کام کر کے تو وہ راستہ بتا دیا کہ اب آپ جانے اور آپ کا کام نہیں. انہوں نے اس چوری کے کنویں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، پھر اس میں سے اس چوری کے کنویں میں سے کتا نکالا تاکہ کنواں صاف ہو. اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام اس وقت دنیا میں سر فہرست کے صحافیوں میں آنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ پاکستان میں بہت کم مثالیں اس کی ملتی ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا، کسی ایجنسی کے کہنے پہ، کسی پارٹی کے کہنے پہ، یا کسی بھی لالچ کے ذریعے نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ نظر آ جاتی ہے نا کچھ چیزیں، اور اس کا صلہ انہیں کیا مل رہا ہے کہ یہ 2 دفعہ اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے بھائی کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے گئے، اس سے بھی بری ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی پنجاب حکومت آپ کو پتہ ہے کن کی ہے. تو ابھی تک یہ زیر عتاب ہے. جب ان کی والدہ محترمہ حیات تھیں، 70 سالہ والدہ اس وقت، تو ان کو بھی بڑا پریشرائز کیا گیا، ان کو بھی بڑی تکلیف دی گئی. لیکن یہ شخص اپنے پیشے کے ساتھ ڈٹا رہا، اپنی سٹوری کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ. کمٹمنٹ جو تھی نا وہ بڑی دیکھنے والی تھی. آج لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے یہ کہنے دیجیے گا کہ انہوں نے ایک دیگ جو ہے نا بنی بنائی دے دی لوگوں کو. اب اس میں سے لوگ اپنی اپنی مرضی کی بوٹی اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی ہم نے یہ بوٹی بنا کے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، حالانکہ اصل کام ان کا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ ہی اتنی پروجیکشن ملی، 5% بھی نہیں ملی پروجیکشن. بے شک یہ مختلف ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں مختلف چینلز پہ، لیکن جو پروجیکشن کا ایک ہوتا ہے نا اصل ڈیویڈنڈ، وہ نہیں انہیں ملا. ڈیویڈنڈ کیا ملتا، بےچارے زیر عتاب ہیں آج تک، اور جاب لیس بھی ہے بڑی مشکل سے. یعنی کہ اب میں کیا کہوں کہ گھر کی چیزیں بیچ کے انہوں نے گزارا کیا اپنے آپ کو. تو ایسے صحافی آپ کو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں صحافت جو ہے لفافہ ہے. لفافہ ہوں گے، ہر پیشے میں ہوتے ہیں، سیاست میں ہے، صحافت میں ہے، عدلیہ میں ہے، وہ ہر جگہ پہ بیوروکریسی میں ہے. لیکن زندہ یہ چیزیں کس طرح رہتی ہے کہ جو لوگ اصل کام کرتے ہیں اور اصل حقائق تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی جان جوکھوں کا وہ بڑا ایک اس میں سے گزرتے ہیں تکلیف میں سے، لیکن عوام کو حقائق لا کے بتاتے ہیں. اب سم ٹائم اس میں کسی صحافی کا ایجنڈا بھی ہوتا ہے، ان کے میڈیا ہاؤس کا ایجنڈا بھی ہوتا ہے، وہ مان لی بات. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو چیز لا رہے ہیں کیا وہ اس کی سٹینڈنگ ہے کہ نہیں. نہ ہی ان کا ایجنڈا تھا، نہ ان کے ساتھ ان کا ادارہ کھڑا ہوا، بےچارے تنہا رہ گئے. لیکن ابھی بھی یہ اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی میں ان کے انٹرویوز دیکھ رہا ہوں کہ مزید اس میں سے ڈگ آؤٹ کر رہی ہیں، چیزیں نکل رہی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ گاڑی بھی تھی، کلاشنکوف بھی تھی، اور بڑی ساری چیزیں تھی. تو آج ان سے بات کرتے ہیں. میں اس لیے یہ انٹرویو کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا پہلے کسی اوورسیز دوست کے ساتھ انٹرویو ہوا ہے کہ نہیں. ہمارا یہ جب میں کچھ عرصے غیر حاضر تھا فیس بک سے، کیونکہ ٹویٹر سپیس پہ بہت ہم نے ٹائم دیا. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اپنا اس چینل پہ لائیں، بے شک میں پیپلز پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن جو بھی صحافی آتے ہیں میں انہیں کھل کے کہتا ہوں پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کریں، کیونکہ میں صحافت سے بھی تھوڑا بہت تعلق رکھتا ہوں. اور یہاں پہ یہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم پیپلز پارٹی کی تعریف کروانے کے لیے کسی ساتھی کو لائیں، نہیں. اور ان سے میں پہلا سوال بھی کروں گا ایسا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہم اس انٹرویو کو آپ کے لیے کتنا کوالٹی بنانے کی کوشش کریں گے. اوورسیز میں جب کوئی ہمارے ساتھ جو دوست آتے ہیں سیاستدان، صحافی، تو وہ اوورسیز والے فیل کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں.
ویسے تو ہم پاکستان کے چینل دیکھ لیتے ہیں یہ وہ، لیکن ہمارے پروگرام کے تھرو لوگ اب فیل کرتے ہیں جی کہ یہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے کوشچن یہاں پہ میرے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے کامنٹس، تو وہ میں شو بھی کرتا ہوں، ان کامنٹس میں سے میں ان سے پوچھ بھی رہتا ہوں. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کا اور تعارف کراؤں. کیوں کہ یہ بہت زیادہ تعارف کے لائق ہیں، بلکہ ان کو ابھی تک جو نقصانات ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی گورنمنٹ، کوئی ادارہ وہ ان کو پورا کر سکے گا. اپنی ان کا ازالہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو اینی وے بات کرتے ہیں، آج ہمارے معزز مہمان ہیں سینئر صحافی پاکستان کے جو اس وقت جاب لیس ہیں، ایسے صحافی ہیں، رانا ابرار خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی رانا صاحب السلام علیکم اور جی ویلکم. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو رانا صاحب. میں جو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ صرف عوام کے سامنے آپ یہ رکھیں کہ آپ نے صحافت کب شروع کی اور صحافت کرنے کا مقصد کیا، کیونکہ یہ ہم ہر ایک سے کرتے ہیں، کوئی سیاستدان بھی ہو کہ کس وجہ سے آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ذرا کچھ اپنے آپ کو بتائیے گا کہ جب صحافت کس سے انسپائر ہو کے کی، کیوں کی اور کیا کیا تکالیف ہوئی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحافت کوئی آسان کام نہیں ہے. جی سر، اوور ٹو یو. میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر اپنا نقطہ نظر رکھنے کا موقع پیش کیا اور موقع پرووائڈ کیا. میں بڑا خوش قسمت فیل کرتا ہوں کہ خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ میں انٹریکشن کر پا رہا ہوں. جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں پر عمران خان کا جادو چلا ہوا ہے، پاکستانی ڈیسپورا اس کے ساتھ ہے، اور شاید ہو بھی کیونکہ عمران خان نے ایک ایسا قانون بنایا تھا کہ جس کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو ہر حلقے میں قومی اسمبلی کی ہر کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا تھا. اور اس کے اوپر کافی سارے اعتراضات بھی تھے، مگر جن کو یہ سہولت مل رہی تھی، جو ریلیف مل رہا تھا، ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر اس کا چلا جانا ان کو صاف ظاہر ہے کہ غصہ پیدا کر سکتا ہے. تو آج یہ بڑا پلیٹ فارم ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں سے، پاکستانی ڈیسپورا کے ساتھ گفتگو کر پا رہا ہوں. جہاں تک صحافت کی بات ہے تو میں نے 96 سے صحافت کا آغاز کر دیا تھا. اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتا رہا ہوں 91 سے 96 تک. تو میں آپ کو بتانے میں بالکل فخر محسوس کروں گا کہ میرا تعلق پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا. میں اس کا مختلف عہدیدار رہا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب سب سے پہلا مجھے عہدہ دیا گیا تھا وہ تھا سیکٹری انفارمیشن کا. تو میں پریس ریلیزیں بنایا کرتا تھا، اور راجن پور میں جو وہ ہفت روزہ اخبار تھے یا قومی اخباروں کے نمائندے تھے، ان کو جا کر پریس ریلیزیں ہینڈ اوور کیا کرتا تھا. تو وہ پریس ریلیزیں بناتے ہوئے پھر میں کالم بھی لکھنا شروع کر دیے، اور اس طریقے سے جب میں پریس ریلیز دے کر آتا تھا پھر میں کالم بھی لکھتا تھا اور وہ کالم بھی دے کر آتا تھا. تو اس طریقے سے وہ میری گرفت بنتی گئی خبر بنانے کے حوالے سے. جو میں ایسی پریس ریلیز بنایا کرتا تھا کہ ہو بہو چھپ جاتی. وہ رپورٹر اس میں رپورٹر یا سب ایڈیٹر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کیا کرتا تھا، جیسے میں بناتا تھا ویسے کی ویسی چھاپ دیا کرتے. تو اس طریقے سے مطلب میرے اندر صحافت کی سکلز آ گئی تھی. تو یہ 96 میں ہمارے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، اب لاہور میں ہوتے ہیں، ارشاد امین ہیں، جو کہ ضلع رحیم یار خان چاچڑا شریف سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے ایک سرائکی اخبار شروع کیا تھا ملتان سے، روزانہ سجاگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بنے بنائے صحافی ہو، آپ آ جاؤ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. پھر میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا. تو وہ اخبار بعد میں بند ہو گیا. پھر میں نے روزنامہ سنگ میل ملتان سے، پھر ایک اور اخبار تھا پنجاب کے بڑے صحافی تھے اسار رائی جھنگ سے، ان کو تعلق تھا، ان کا اخبار تھا نیا دن، ملتان سے نکلتا تھا، بہت ہی اچھا اور بہت ہی سرکولیشن والا اخبار تھا. تو میں اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اسار رائی صاحب سے بھی کافی کچھ سیکھا تھا. پھر میں موو کر گیا تھا کراچی. میں وہاں پر روزنامہ امت میں بھی کچھ عرصہ گزارا میں نے، اور نذیر لغاری پاکستان کے جو بہت بڑے جرنلسٹ ہیں ان کی میں صحبت میں رہا. اور اس کے علاوہ میں ڈیرہ غازی خان میں
یہ بھی بتا دوں کہ سید محسن نقوی کی صحبت میں بھی رہا، اور ان کا احسان ہے، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اس دور میں جب ڈیرہ غازی خان میں تھا تو میں ایف ایس سی کر رہا تھا، اور ان کا کیونکہ وہ تو آدھے شہر کے مالک تھے، بہت بڑے بندے تھے، اور ان کا ایک چوبارہ تھا، وہاں پر ہم جاتے تھے اور ان کی خدمت، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں سید محسن نقوی، جو ان کا، آپ کے یہ ناظرین پر ان کا اصل نام سید غلام عباس شاہ اور تخلص محسن نقوی ہے، ان کی میں مطلب ان کے مہمان ان کے چائے کا کہے آتے تھے یا اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرتے تھے شاہ صاحب کے لیے، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی، اور ہم بڑی وہاں پر عقل و دانش کی، گیان کی باتیں سنا کرتے تھے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے۔ تو 2003 میں اسلام آباد میں موو کر کے آیا تھا، اور سب سے پہلا میرا اخبار تھا روزنامہ پاکستان اس وقت، اس میں نے 4 سال کام کیا، روزنامہ اوصاف میں، خبریں میں، ایکسپریس اخبار میں، ایکسپریس ٹی وی میں نے کام کیا، اور کچھ عرصہ مجھے زرداری صاحب نے اسائنمنٹ دے دی تھی ریڈیو پاکستان کی، وہاں پر بھی میں نے کام کیا تھا، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا تھا، وہاں پر ابھی پیپل پارٹی کی حکومت موجود تھی لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جس چیز کا مجھے کہا تھا کہ ویب سائٹ شروع کر رہے تھے، نیوز ویب سائٹ ریڈیو پاکستان کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو رن کرنا ہے آپ نے، میں نے رن کر دیا، اور اس کے بعد میں نے ریزائن کر دیا، میں چلا گیا تھا، اور میں نے اخبار جوائن کر لیا تھا۔ تو اس کے علاوہ میں یہ انڈیپینڈنٹ نیوز پاکستان نیوز ایجنسی ہے اس میں رہا، اور لاسٹلی میں روزنامہ جہان پاکستان میں تھا۔ تو جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران میں نے یہ مجھے خبر سورسز نے انفارمیشن دی کہ توشہ خانہ کے تحائف عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے فروخت کیے ہیں۔ اچھا، میں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اگر صرف ہوتی تحائف توشہ خانہ سے لے لیتے، رانا صاحب یہ تو ہم سوال شروع کریں گے توشہ خانہ کے بارے میں، پہلے میں آپ سے متعلق ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے جو سفر کیا اور کیسے یہاں تک پہنچے، کیونکہ یہ بڑی کوئی سٹوری ہاتھ لگ جائے تو ایک تو نام اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو یہ ہر جرنلسٹ کی خواہش تو ہوتی ہوگی کہ میرے ہاتھ کوئی آگے چلنے کے لیے کوئی بڑی سٹوری لگے۔ تو اس سٹوری سے آنے سے پہلے آپ کا جو ابھی تھوڑا سا میں 1-2 سوال اور کروں گا کہ کبھی اس سے پہلے کوئی ایسی سٹوریز آپ کو ملی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہ جس کو آپ نے چاہا کہ میں کروں تو شاید یہ کوئی ایسا مس ہوا آپ سے کوئی چانس، یا آپ نے ہوتا ہے نا سم ٹائم مس کر دیتا ہے بندہ کہ ہاں جی یار مجھے وہ سٹوری مل رہی تھی اور میں نے وہ شاید کسی وجہ سے وہ کلک نہیں کی یا مس ہوگی، کوئی ایسا بھی چانس آیا آپ کی لائف میں؟ بہت چانس آئے ہیں میر صاحب، ایسے کئی بار ایسا ہوا، بلکہ مجھے اب تو اتنے مطلب یہ 25-26 سال کا صحافت کا سفر ہے، بہت ساری چیزیں تو یاد ہی نہیں رہی ہیں، ان کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ یہ واقعی آپ نے اہم صحافت کے موضوع کا اہم سوال چھیڑا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹوری ملتی ہے لیکن سورس کمزور ہوتا ہے، اس کو ہم ریلائے نہیں کر رہے ہوتے اور سٹوری نہیں دیتے، بعد میں کوئی کسی اور سے وہ بریک ہو جاتی ہے تو بہت بڑی سٹوری بن جاتی ہے، ہم پہچا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ سٹوری کوئی اس میں جان نہیں ہے، کہ یہ کوئی بڑی سٹوری ہے نہیں، لہذا اس کو چھوڑو، دفع کرو، اور وہ کوئی اور اس کو بریک کرتا ہے تو پھر ہم بتا رہے ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی میں بتا دوں کہ بعض اوقات ایز اے صحافی ہمیں ایسی سٹوری ملتی ہے جس سے پروفائل بھی بڑھ جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کسی اچھے ادارے میں جاب بھی مل جائے بہت بھاری بھرکم سیلری پر، لیکن وہ ملک کے مفاد کے خلاف ہوتی ہے، تو میں نے 2-3 مرتبہ ایسا کیا کہ وہ سٹوری نہیں تھی، پتہ نہیں میں نے درست کیا یا غلط کیا، مجھے نہیں پتا، لیکن اس وقت کیونکہ میں اکانومی جرنلسٹ ہوں، میں اکانومی کے بارے میں بات کروں گا، اس وقت مجھے لگ رہا تھا اور ڈیفینیٹلی یہی حقیقت تھی کہ یہ سٹوری پاکستان کے معاشی مفاد کو ڈیمیج کر رہی ہے، لہٰذا میں نے وہ سٹوری نہیں دی، بہت بڑی ٹمپٹیشن کے باوجود بھی۔ میں یہ بتاؤں، یہ سٹوری ایک تھی اس حوالے سے، اس وقت جب 2013 کا سال تھا، اور یہ غالباً جنوری یا فروری 2013 میں مجھے ایک پارٹی دبئی سے آئی تھی،
और उसमें एक गैर मुल्की था, गोरा था, 2 पाकिस्तानी थे जो साबका सहाफ़ी थे, यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर में करके गए थे। उन्होंने मुझे टच किया था। मैं उस वक़्त इंडिपेंडेंट न्यूज़ पाकिस्तान, एक INP के नाम से न्यूज़ एजेंसी है, उसमें काम करता था और मेरी खबरें बहुत छपती थी। मतलब एक खबर मैं फाइल करता था तो 8-10 उर्दू अखबारों में फ्रंट पेज पर और 4-5 अंग्रेजी अखबारों में फ्रंट पेज पर छपा करती थी। तो उन्होंने देखा कि एक ही बंदे के ज़रिए सारे मीडिया को, प्रिंट मीडिया को कैप्चर किया जा सकता है। तो उन्होंने मुझसे राब्ता किया, सरीना होटल में मुझसे मुलाकातें की, डिनर वगैरह ये वो, तो बड़ा लेविश सिस्टम था। तो आखिरकार उन्होंने मुझे एक फाइल दी। उस फाइल में शायद आपको याद होगा, मैं इशारतन कहूँ कि एक कैश डिपॉजिट हमारे हमसाया मुल्क ईरान से ज़रदारी साहब ने अरेंज किया था। उसके हवाले से थी कि जी, जी, इसमें बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, इसमें बड़ा कमीशन खाया जा रहा है। हालाँकि वो कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स भी थे। एज़ ए इकॉनमी जर्नलिस्ट हमारा एक्सपीरियंस है, हम डॉक्यूमेंट को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये फेक होगा या ओरिजिनल होगा। उसमें चंद डॉक्यूमेंट फेक भी थे। ज़्यादा कमीशन भी कोई खाया नहीं जा रहा था। लेकिन असल चीज़ ये थी कि ईरान पर पाबंदियाँ थीं और वो जो पैसा कैश डिपॉज़िट लाया गया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो हमारे लिए बहुत गनीमत था, क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ही नॉमिनल था। उस वक़्त इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट 17% चल रहा था और वो पैसा हमें 3% के लगभग, बल्कि पौने 3% पर मिला था। तो और भी पैसा आना था, लेकिन पीपल पार्टी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली चली गई थी और नई गवर्नमेंट तैयार नहीं हुई थी इसके ऊपर रिस्क लेने के लिए। बल्कि फिर वो एक और मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने ये खबर भी उनके कहने पर दे दी थी, उस पार्टी के कहने पर। और आपको याद होगा कि एक KASB बैंक, खादिम अली शाह बुखारी बैंक बंद हो गया था पाकिस्तान में, वो उसमें इन्वॉल्व था। और ये अमेरिका ने ये बंद करवा दिया था और वो जो लोग थे वो भी उसी कैंप के थे जो खबर देना चाह रहे थे। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि अगर आपका कोई नजरिया है और आप खुद को प्राउड फुल पाकिस्तानी फील करते हैं, तो लाजमी नहीं होता कैरियर बनाना। सही हो गया, जी मीर साहब। ठीक हो गया। जबरदस्त जी। ये होता है कि सवालात इसलिए एक दो बुनियादी इसलिए किए हैं कि लोगों को बेस भी समझ आए कि सहाफत का मकसद क्या है। ये आप लोग, कलम आपकी जो है, ये आपके हाथ में एक बंदूक है, एक क्लाशनकोफ है, कुछ भी है, आप सहाफत की सरहद पे बैठे होते हैं और इससे ही आपने अपना दिफा करना होता है और इससे ही अटैक करना होता है। अब आते हैं सर सवालात की तरफ। कुछ सवालात तो आ चुके हैं दोस्तों के कमेंट्स में, लेकिन मेरा पहला सवाल है जो मैंने वादा भी किया था ट्विटर स्पेस में, PTI के भी दोस्त थे, उनका एक गिला है राना साहब कि वो कहते हैं जी कि वो देखें जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी तो तोशा खाना से चीजें निकाली हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपने खाली इमरान साहब की हुकूमत की वजह से ये किया, या पहले उन दो पार्टियों की हुकूमत में क्यों नहीं किया, या अभी भी आप राइट टू इंफॉर्मेशन उन पार्टियों की हुकूमत की भी ले सकते हैं, ये आपने क्यों नहीं किया या करेंगे या क्या, इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये इस तरह उनका ये शक होता है जी वन साइडेड है। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मीर साहब, और आपने इंतहाई नफासत के साथ प्रोफेशनल तरीके से ये क्वेश्चन किया है। जो बात दूसरे लोग यहाँ पर चलते फिरते भी मुझसे सवाल कर लेते हैं और इंटरव्यू में भी करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, लेकिन मैं आपके इस फोरम पर तफसीली इसका जवाब दूंगा और आपके उन दोस्तों की भी तशफ़ी हो जाएगी। पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि मेरा फेसबुक आईडी है राना अबरार खालिद के नाम से, राना स्पेस अबरार स्पेस खालिद। बराए मेहरबानी उसके ऊपर चले जाएं और देख लें कि मैंने माजी की हुकूमतों के खिलाफ क्या क्या खबरें दी और कितनी खबरें दी, उनको अंदाजा हो जाएगा। नून लीग की हुकूमत के दौरान मैं आपको बताऊं कि एहसन इकबाल प्लानिंग मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर थे बायक वक्त, और मैंने CPEC के वेस्टर्न रूट के हवाले से, उसको नजरअंदाज करने के हवाले से बहुत सारी खबरें छापी थी। और ये हुआ कि हत्ता के एहसन इकबाल ने मुझे बहुत कुछ ऑफर भी किया था,
اور جب میں نے ریجیکٹ کر دیا اور خبریں بھی نہیں رکی تو وہ اخبار مالک کے گھر چلے گئے تھے. اخبار مالک جو ہے وہ ایک یونیورسٹی چلاتے ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹی, اور احسن اقبال ان کی یونیورسٹی میں کبھی لیکچر دیتے رہے تھے, ان کا تعلق تھا, اور جا کر کہا کہ رانا ابرار نے مجھ سے پیسے مانگے تھے, میں نے پیسے نہیں دیے اور اس لیے وہ میرے خلاف خبریں چھاپ رہا ہے. مجھے معطل کر دیا گیا. لاہور سے 3 لوگوں کی گروپ ایڈیٹر, جوائنٹ ایڈیٹر اور ڈائریکٹر HR, یہ 3 لوگوں کی ٹیم آئی, مجھے معطل کر دیا گیا اور 2 مہینے انکوائری کرتی رہی. میں نے ان سے پہلے پوچھا کہ میں نے انکار کر دیا, میں نے کہا کہ کوئی ثبوت پرووائڈ کیا. انہوں نے کہا ثبوت انہوں نے کوئی پرووائڈ نہیں کیا. میں نے کہا اب میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. احسن اقبال صاحب نے پلاننگ کمیشن میں ایک ممبر ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کی پوسٹ کریٹ کی تھی اور اس کی اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ دی تھی جس میں کرائٹیریا بھی لوز کیا گیا تھا, ایکسپیرینس کرائٹیریا لوز کیا گیا تھا 5 سال. اچھا, احسن اقبال نے اپنے ذاتی ای میل سے مجھے میل کی تھی, یو شوڈ اپلائی فار دس, نیچے وہی ایڈورٹیزمنٹ لگائی ہوئی تھی. یعنی کہ آپ نے فارمیلٹی کرنی تھی اور انہوں نے کر دینا تھا, آپ کو کر دینا تھا. وہ پوسٹ مطلب ایکول ٹو 21 گریڈ, مطلب اس کا اس وقت 7.5 لاکھ روپے کا ایڈورٹیزمنٹ. آپ کو نوکری لینے میں مزہ نہیں آتا, آپ کو نکالے جانے میں مزہ آتا ہے. جی, تو وہ میں نے ان کو سوری کہہ دیا تھا. پھر دوران انکوائری میں نے جو اپنے اسٹیٹمنٹ سبمٹ کی, میں نے وہ پرنٹ نکلوا کر میل کا دے دیا. میں نے کہا اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا, لیکن میں یہ ثبوت آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آفر کی, میں نے ریجیکٹ کر دی, اسی لیے میرے جا کر کمپلینٹ کی ہے. ہوا یہ کہ 2 مہینے کے بعد مجھے بحال کر دیا گیا. نہ صرف میں بحال ہوا بلکہ اسی اخبار روزنامہ جہان پاکستان میں اگلے مہینے مجھے ایکسیلنٹ رپورٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی ملا. اسی طرح اسحاق ڈار کے ساتھ 4 سال میری لڑائی چلتی رہی. اس نے ایک بار کہا, آرڈر کیا تھا کہ یہ پی بلاک کے آڈیٹوریم میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی, بجٹ پریس کانفرنس تھی, اس نے سیکورٹی گارڈوں کو آرڈر کیا تھا کہ اس کو نکال دیا جائے. وہ تو میرے کلیگ کھڑے ہو گئے تھے, انہوں نے کہا تھا اگر اس کو نکالیں گے تو ہم بائیکاٹ کریں گے آپ کی پریس کانفرنس کا. یہ ہوتا رہا. تیسری بات میں آپ کے ان دوستوں کو بتاتا ہوں جنہیں سوال اٹھایا ہے کہ چند دن یا کچھ دنوں پہلے, مہینہ 1.5 مہینہ ہوا ہے, یہاں نیشنل پریس اسلام آباد میں جہاں میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں, یہاں پر کائرہ صاحب آئے اور سیلاب کے حوالے سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. میں نے ان سے کویسچن پوچھا کہ جناب آپ نے سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کا تو ذکر کیا ہے, لیکن سرائکی ایریا میں بھی بہت بڑا سیلاب آیا ہے, وہاں کا آپ نے ذکر نہیں کیا. تو وہ بات ان کو بری لگی اور اچھا خاصا ان کے ساتھ ایک تلخ کلامی ہو گئی. اس وقت کائرہ صاحب کی وہی ویڈیو یہ PTI والے دوست وائرل کرتے پھر رہے تھے. لیکن یہ اتنا ان کا چھوٹا ذہن مجھے نہیں معلوم ہے کیوں ہے کہ کسی بندے پر تبرہ پڑھنے سے پہلے, کوئی فتویٰ لگانے سے پہلے اس کی یہاں پہ ایک سوال آتا ہے. ایک سوال کا تو آپ نے جواب دے دیا, خود ہی سوال کھڑا کیا, خود ہی جواب دے دیا کہ احسن اقبال صاحب نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور کیا آفر کیا, کیا آپ نے کیا اور کیا آفر ہوا. کائرہ صاحب کے ساتھ جب آپ نے کیا, ظاہر سوال کی تلخی ہوتی ہے, ریئیکشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کا ریئیکشن آپ کو کچھ جیسے ہوتا ہے نا بعد میں کوئی مطلب کوئی جاب یا کچھ ایسا, کوئی وہ یا تڑی یا کچھ پیار محبت کچھ ایسا کیا اس کے بعد؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں کیا. مجھے کوئی تڑی نہیں دی گئی, بالکل کوئی انتقامی کاروائی یا کچھ بھی نہیں کیا. بلکہ چودھری منظور میرے دوست ہیں, جو کائرہ صاحب کے بھی دوست ہیں, انہوں نے مجھے فون کر کے معذرت کی تھی کہ وہ کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پایا تھا آپ کے سوال کو, میں بھی جذباتی ہو گیا اور آپ بھی جذباتی ہو گئے تھے. تو کائرہ صاحب نے خود مجھ سے معذرت نہیں کی, لیکن چودھری منظور نے مجھے فون کیا, کامریڈ نے, اور انہوں نے مجھ سے معذرت کی کائرہ صاحب کے نام کے اوپر. میں بالکل ان کے پیٹھ پیچھے ایسی بات نہیں کروں گا جو صحیح درست نہیں ہوگا. اب میں تو آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ توشہ خانہ کے تحفے دوسروں نے بھی لیے ہوں گے. میں جیسے بتا رہا تھا پہلے کہ یہ نومبر 2020 کی بات ہے. میرے سورسز ہر صحافی کے ہوتے ہیں اور ہم سورسز کو ہڈن رکھتے ہیں ہمیشہ. مر جائیں گے سورس کا نام نہیں بتائیں گے, اندر ہونا ہے تو بے شک ہو جائیں گے. انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران خان نے تحفے بیچے. میں بڑا حیران ہو گیا, میرا ماتھا ٹنکا کہ یار تحفے, وزیر اعظم نے تحفے بیچے. انہوں نے آپ کو ہی کیوں بتایا؟ کوئی اور بھی بڑے بڑے چینل تھے, بڑے صحافی تھے؟
नहीं, यूं होता है कि ज्यादा इंटरेक्शन होता है बीट रिपोर्टर्स का। मैं इस्लामाबाद में इकोनॉमी के जितने भी हलके हैं पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में, उनमें मुझे अच्छी तरह से लोग जानते हैं और ट्रस्ट करते हैं। जी। सोर्स हमेशा उस रिपोर्टर को नहीं स्टोरी तो देता इससे है इससे इससे जिस पर पाकिस्तान की ट्रस्ट। इकोनॉमी, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन भी है हमारे दोस्तों के दो तीन, तो ये आपके सवाल ये में इस जवाब पर मिल आते जाएगा। हैं, नहीं, इस पर आते हैं, वो मैं बताता हूँ। पहले इस पर जी बात करते हैं। तो वो मुझे स्टोरी दी कि इमरान खान ने तोहफे बेचे, कुछ ठीक प्रूफ है। थे, कुछ इंफॉर्मेशन थी। मेरा माथा ठनका कि यार तोहफे बेचे हैं। मैं आज भी आपको बता दूं, आपके दोस्तों को, सारे नाजरीन को, कि अगर बेचने की बात ना होती तो मेरे लिए ये कोई स्टोरी अहम ही नहीं थी। राणा साहब, आप यहाँ पे एक कानूनी सवाल है, ये कानूनी हाँ, सवाल आ रहा है, आपका माथा ठनका। क्या कानूनी तौर पे, जैसे वो कह रहे हैं कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, क्या कानूनी तौर पे कोई भी वजीर या वजीर आजम या सरबराह मुमलिकत वो तोहफा लेके बेच सकता है? ये कानूनी बात बताइएगा, ये ये बताइए। कानूनी बात मैं बताता हूं, बिल्कुल नहीं बेच सकता। बल्कि क्योंकि लोगों कल को ही पता चले ना, लोगों को पता चले बल्कि कि मैं इसके पीछे बल्कि जी। कल ही मैंने इमरान खान को इस उनके स्टेटमेंट पर एक खुला खत भिजवाया है, जी जिसमें मैंने सवालात उनसे किए हैं और बताया है कि आपने कानून और कवायद और जवाबित की 12 खिलाफ वर्जियां की हैं। ये घड़ी कैसे आपकी अपनी जाती हो सकती है? पहले उस बात को मैं मुकम्मल कर दूं, मेरे साथ मुझे इजाजत दें, ये खत वाली क्योंकि बात पे मेरा एक सवाल है, बाद में करेंगे, पहले वो बात मुकम्मल करें जी। हाँ, वो यूं है कि तोहफे सब ने लिए हैं रूल्स के मुताबिक या रूल्स की थोड़ी बहुत वायलेशन करके। मतलब एक अगर 25% पेमेंट करनी थी तो 15% कर दी, इस तरह कर दी। उनके पास जवाब है, किसी का वकील नहीं हो कि उनकी तरफ से बोलता रहूं। सही। मेरा इशू ये है कि आज तक तोहफा बेचने की कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास बगैर इमरान खान के। ठीक। मेरे नजदीक ये सबसे बड़ी बात थी कि हमारे वजीर आजम ने दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफा बाजार में बेचा है। ये मीर साहब, अखलाकियात भी कोई चीज होती है। हमारे मुल्क में कल्चर और अखलाकियात के जोर पर हम चल रहे हैं। आप इस वक्त लंदन में बैठे हैं। लंदन में आपका अगर एक्सीडेंट हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, या किसी का भी, तो एक मोबाइल का बटन दबाएंगे, एम्बुलेंस, पूरी एम्बुलेंस एक हॉस्पिटल नुमा होगी, पूरी सहूलियात के साथ विद इन नो टाइम पहुंच जाएगी। यहां बिल्कुल। मेरा एक बार मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था रावल चौक के साथ, और हम्म। दो लोग थे हम, 2 बजे का टाइम था। वहां पर कुछ 10 गाड़ियां रुक गई और उन्होंने हमारा मोटरसाइकिल को अलग सेफ किया और हमें अलग हॉस्पिटल पहुंचाया। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी इखलाकियात है, जिसके जोर पर, जिसके वजह से हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये मुल्क चल रहा है। अखलाकियात कोई बेमानी चीज नहीं है कि हमारे वजीर आजम ने दूसरे मुल्क के सरबराह का दिया हुआ तोहफा बाजार में बेच दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। मेरे लिए खबर ये थी, मुझे कहते हैं कि जी फौजी सरबराहान को तोहफे मिलते हैं, आपने उनकी स्टोरी नहीं दी। मैंने कहा जनाब, फौजी सरबराहान, फौजी जनरलों ने तोहफे लिए होंगे, बगैर पेमेंट के ले लिए होंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि तोहफा बेचा है तो मेरे लिए स्टोरी है, वरना मेरे लिए स्टोरी नहीं है। जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने, यूसुफ रजा गिलानी ने, किसी ने भी, मुराद अली शाह ने अगर तोहफा बेचा है तो मुझे क्ल्यू दें, मैं उसके ऊपर काम करूंगा, मैं स्टोरी करूंगा। मेरे नजदीक महज तोहफा ले लेना स्टोरी नहीं है। तोहफा बेचना कभी हरकत है, एक कभी फेल है, डर्टी अच्छा प्रैक्टिस है। उसके ऊपर मैं गया था और इतना मैंने इंतकामी कार्रवाइयां फेस की, इतनी स्ट्रगल की, और अभी तक मैं फेस कर रहा अच्छा हूं। अच्छा, पहला तो आपके जहन में ये आया कि तोहफा बेचा क्यों गया? जब आपने इसमें स्टेप इन किया तो आपको पता चला कि ये तो औने पौने दामों और ये पैसे कमाए गए, जी ये बिल्कुल, बात का वो तो स्टेप होगा परतें ना? खुलती गई। वो तो फिर परतें खुलती चली गई, खुलती चली, अभी तक खुलती जा रही हैं। अभी भी ये 40% से ज्यादा अनफोल्ड नहीं हुआ है मामला। ओके। तो अभी आप ये तोशाखाना लोगों को ये भी बताएं ना, हमें तो कुछ पता है, कुछ मजीद एनलाइटन करें कि ये अपना कैबिनेट डिवीजन है, कौन से डिवीजन के तहत ये आता है और क्या क्या इसके तरीकाकार है? जी मैं आपको बताता हूं। बल्कि मैं कल इमरान खान को जो ओपन लेटर भेजा है, उसके थोड़ी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा।
ये बल्कि मैं उसको खोल लेता हूँ और मैं बताता हूँ कि सवालात तो राना साहब बहुत सारे हैं अभी, क्योंकि मैं जी चाह रहा हूँ कि तफसील से आज ओवरसीज वालों के कान खुल जाएं जी कि जिन लोगों ने उस जी गोएबल्स माफिया के लिए पाकिस्तान के पासपोर्ट भी जला दिए, पाकिस्तान के जी झंडे जला दिए, जी उनको पता चले कि वो तो टके मार चोर निकले हैं। जी, मैं आपको बताता हूँ सर ये कि मैंने जो इमरान खान को कल खत लिखा है उसमें उनको बताया है कि जनाब ये जो घड़ी है आपकी जाती नहीं थी, बल्कि आपको सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इस वजह से गिफ्ट की थी क्योंकि आप वजीर आजम पाकिस्तान। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान ने 12 वायलेशन की हैं लॉ और रूल्स की, तो उसके ऊपर मैं आ रहा हूं कि सबसे पहली जो वायलेशन हुई है जी सिर्फ इसी गिफ्ट में नहीं बल्कि जितने भी गिफ्ट इमरान खान को उनके दौर में मिले तमाम में वो वायलेशन हुई है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर तोशा खाना ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक पाकिस्तान का वजीर आजम या कोई भी हुकूमती ओहदेदार जब गैर मुल्की दौरे पर जाता है और वहां तोहफा रिसीव करता है तो उस मुल्क के अंदर मौजूद पाकिस्तान का एम्बेसडर ये पाबंद है, उसकी ओब्लिगेशन है कि वो तोशा खाना के इंचार्ज को उन तहफ की एक रिपोर्ट बनाकर भिजवाए। ठीक। लेकिन इमरान खान ने एम्बेसडर को रोक दिया, हमारे सफीर को रोक दिया कि अगर रिपोर्ट भिजवाई तो ट्रांसफर कर दूंगा। पहली वैलेशन ये हुई है, ये लॉ की भी वैलेशन है और संगीन वैलेशन है। नंबर 2, कानून का तकाजा था कि सऊदी वली अहद से मिलने वाले तहफ इमरान खान जो वफद में काबीना डिवीजन का एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है या पीएम ऑफिस का डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है उसके सपुर्द करते हैं और वो ऑफिसर वतन वापस पहुंचने पर वो तहफ तोशा खाना में जाकर रखवा देता। ये है कानूनी प्रोसीजर। लेकिन इमरान खान ने वो उस ब्यूरोक्रेट को तहफ हैंड ओवर करने की बजाय अपने जाती लगेज में रख दिए और अपने घर बनीगाला ले गए। ये दूसरी वायलेशन हुई है। तीसरी वायलेशन इमरान खान ने यह की है कि रूल्स के मुताबिक होना यह चाहिए था कि 2019 में सऊदी वली अहद से मिलने वाले तहफ पहले तोशा खाना में जमा होते और फिर रेसिपिएंट यानी इमरान खान तहरीरी दरखास्त देते उनकी रिटेनिंग के लिए और एक साथ में बयान हल्फी भी सबमिट करते। मगर ऐसा नहीं हुआ। जबानी कहने पर रिटेनिंग की रस्मी कार्रवाई पूरी की गई। इमरान खान की तरफ से रिटेन करने की कोई रिटर्न एप्लीकेशन और बयान अल्फी या अंडरटेकिंग जमा नहीं करवाया गया। ये तीसरी वायलेशन थी। अच्छा, चौथी वायलेशन इमरान खान ने यह की है कि तहफ रिटेन करने के लिए दरखास्त मौसूल होने के बाद इंचार्ज तोशा खाना 15 रोज के अंदर रूल्स के मुताबिक एफबीआर से और प्राइवेट मार्केट से अप्रेजर बुलाता और वो दोनों अप्रेजर उन तहफ का एग्जामिनेशन और प्राइस एवेल्यूशन करके एक प्राइस असेसमेंट अपनी अपनी करते। ये चौथी वायलेशन हुई है कि इन तहफ की जो भी इमरान खान को तहफ मिले उन्होंने रिटेन किए, अप्रेजल नहीं हुआ है उसका। ना तो एफबीआर से अप्रेजर बुलाया गया और ना ही ओपन मार्केट से अप्रेजर बुलाया गया। बल्कि जब मुझे नायब ने बुलाया था तो 3 तहफ की अप्रेजल बताई मुझे डीजी नायब ने। मैंने कहा दिखाएं मुझे। ये कैरी ऑन रखिएगा। इससे पहले मैं सवाल ये करना चाह रहा था, ये आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये सब जुडिस केस तो नहीं है कि आप उसमें कोई फरीक तो नहीं है? नहीं, कोई सब जुडिस नहीं है, ये अंडर इंक्वायरी केस है। ठीक। अच्छा, मुझे डीजी नायब ने कहा कि 3 तहफ जो ग्राफ की घड़ी है और 2 रोलेक्स की घड़ियों के अप्रेजल मौजूद है। मैंने कहा दिखाएं तो सही उनको। जब उन्होंने फाइल मंगवाई और मुझे दिखाया तो वो व्हाइट पेपर के ऊपर बॉल पेन से लिखा गया था अप्रेजल बाई एफबीआर। नीचे लिखा हुआ है 1 रेस्ट वॉच ब्रैकेट में ग्राफ और आगे कीमत लिखी हुई है 8 करोड़ समथिंग। नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, आप यकीन करेंगे? नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है, कि डेट नहीं है, कोई नाम नहीं लिखा। मैंने कहा सर ये तो जाली अप्रेजल है। तो हुआ ये कि उन 3 तहफ की अप्रेजल
उस वक्त मोहम्मद आहद नाम था उनका, डिप्टी सेक्रेटरी इंचार्ज तोशाखाना थे, उन्होंने जाली बनाकर फाइल पे रख दी थी। ये कौन से तो डिवीजन के अंडर आता है जी तोशाखाना? ये कैबिनेट डिवीजन के अंदर। कैबिनेट डिवीजन, ठीक। अच्छा, पांचवी वायलेशन ये की जी। कि होना ये चाहिए था कि रूल्स के मुताबिक तोशाखाना की प्राइस एवेल्युएशन कमेटी बनाई जाती, जो एफबीआर अप्रेजर और प्राइवेट अप्रेजर की तयन करदा कीमतों का जायजा लेकर एक हतमी कीमत की मंजूरी देती। लेकिन वो कमेटी नहीं बनाई गई, सही। उसकी अप्रूवल के बगैर ही रिटेनिंग की कार्रवाई पूरी कर ली गई। ये थी पांचवी वायलेशन। सही। छठी वायलेशन ये की गई कि तोशाखाना रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफिस मेमोरेंडम में तरमीम करके इमरान खान की हुकूमत ने ये दिसंबर 2018 में रिटेनिंग फीस 20% से बढ़ाकर 50% कर दी थी। ठीक। लेकिन 2019 में ये जो ग्राफ का सेट मिला था सऊदी वलीयत से इमरान खान को, ये 2019 के मिड में मिला था। ये इन्होंने 20% पेमेंट पर रिटेन किया, यानी अपने ही बनाए हुए कानून की इन्होंने खिलाफवर्जी कर दी। ये छठी वायलेशन है इस केस में। अच्छा, सातवीं वायलेशन इन्होंने ये की कि ग्राफ कंपनी का जो टेलर मेड डायमंड सेट था, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कीमत $12 मिलियन थी मार्केट प्राइस, वो 2 करोड़ रुपए की मामूली रकम देकर इन्होंने जो रिटेन किया, उसकी पेमेंट 2 करोड़ रुपए की इन्होंने अपने अकाउंट से या अपने नाम पर पे ऑर्डर के जरिए नहीं की, बल्कि अपने फ्रंट मेनू के जरिए पेमेंट करवाई इन्होंने हर गिफ्ट। ये सातवीं वायलेशन हुई सर। हालांकि रूल्स कहते हैं कि जो रिटेन कर रहा है वही पेमेंट करेगा। आठवीं वायलेशन इन्होंने ये की कि दोस्त मुल्क से मिलने वाला ग्राफ कंपनी का टेलर मेड डायमंड सेट, जिसमें एक घड़ी, एक अंगूठी, 2 कफ लिंक्स और एक कलम शामिल था, और गैर मुल्की दौरों से मिलने वाले दीगर तहफ इन्होंने बेदर्दी से फरोख्त कर दिए। हालांकि तोशाखाना से इन्होंने रिटेन किए थे और रिटेनिंग के कुछ तकाजे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा अहम है, ये आठवीं जो वायलेशन है, कि सरकारी जो मामलात हैं उनमें 3-4 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं जी। एक्वायर, परचेजिंग, बाइंग, प्रोक्योरमेंट एंड रिटेन। इन सब के ऊपर अलग अलग कानून का अतलाक होता है। मिसाल के तौर पर जो एक्वायर करना है वो सेक्शन 4 लगाकर डिप्टी कमिश्नर मार्केट प्राइस पर एक्वायर करता है फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और वो उसी पर्पस के लिए ही लैंड है या कोई भी प्रॉपर्टी जो एक्वायर हुई है वो यूज हो सकती है, किसी और मकसद के लिए वो यूज नहीं हो सकती। इसी तरह परचेजिंग है। अब बैंक क्या है, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ग्रेड 17 या इससे ऊपर के अफसरान जो है, ये अपने ऑफिस की छोटी मोटी जरूरियात के लिए 10,000 रुपए की एट ए टाइम खरीदारी कर सकते हैं, जिसके लिए इन्हें ऊपर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती, खुद इसकी अप्रूवल दे सकते हैं। इसको बैंक कहते हैं। इसी तरह प्रोक्योरमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट के ऊपर पेपर रूल्स लागू होते हैं। इसी तरह रिटेन जो है, रिटेन के ऊपर रिटेन की ये रेशनल है कि बंदा बयान हल्फी पर लिख कर देता है, क्योंकि ये तोहफा मैंने एक अहम शख्सियत से हासिल किया है, ये मेरे लिए यादगार है और इसको मैं अपने पास रखना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको रिटेन कर रहा हूं। इसके ये मुझे बताएं कि जब वो रिटेन कर रहा है ये कहकर कि मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूं, उसमें बेचने की कहां से उसको इजाजत मिल गई है? और कभी आज तक दुनिया की तारीख में किसी वजीर आज़म ने तोहफा भी बेचा है? तो ये कानून की खुला खिलाफ वर्जी है तोहफा बेचना। अब मैं आता हूं नवीं वायलेशन जो की है, 9th वायलेशन। वो ये की है कि इन्होंने जो सऊदी वली अहद का ये
ग्राफ का सेट दुबई में बेचा है एक पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन उमर फारूक जहूर के पास, तो ये इनके जो SAPM जुल्फी बुखारी और फ्रंट वुमेन फर्रा गोगी थी, एक पाकिस्तान के बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के निजी जहाज के ऊपर लेकर गई। और कोई भी कीमती चीज जब आप बाहर भिजवाते हैं बेचने के लिए, तो सेक्रेटरी कॉमर्स से NOC लेना जरूरी होता है, एक एक्सपोर्ट के हवाले से NOC होता है। अगर वो ना हो तो फिर इसका मतलब ये समझा जाता है कि आपने बैरून मुल्क स्मगल की है कोई, और ये सेट स्मगल किया गया, इसके ऊपर ये स्मगलिंग की क्लॉज लागू होती हैं। ये इस तरीके से 9वीं वायलेशन है। 10वीं वायलेशन ये की है इमरान खान ने कि जब ये ग्राफ का सेट दुबई ले जाया गया तो इन्होंने ये ग्राफ कंपनी जो मैन्युफैक्चर जिसने किया था उसके शोरूम पर फरोख्त करने की बजाय एक पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन उमर फारूक जहूर के हाथों 75 लाख दिरहम में बेच दिया, क्योंकि इनको पता था कि हम ये चोरी का माल फरोख्त कर रहे हैं, इसलिए ये कंपनी के शोरूम पर नहीं गए, क्योंकि इनको मालूम था कि कंपनी खुफिया कोड मालूम कर लेगी, खुफिया कोड स्कैन करके जो असल खरीदार था उस तक पहुंच जाएगी और उसकी रजामंदी पूछेगी कि क्या वाकई आपने भेजा है इसको फरोख्त करने के लिए। अगर वो रजामंदी शो ना करते तो ये जब्त हो जाता और वापस सऊदी वली अहद के पास ये चला जाता, इनको फूटी कोड़ी भी ना मिलती, इसलिए इन्होंने कंपनी शोरूम पर नहीं बेचा। ये एक वायलेशन है। अच्छा जी, 11वीं वायलेशन मैं आपको बताऊं। 11वीं वायलेशन इन्होंने ये की कि मुल्की कानून और कवायद और ज़वाबित की खिलाफवर्जी ये की गई कि दुबई में सऊदी वली अहद के तहफ़ की फरोख्त से हासिल शुदा 75 लाख दिरहम की रकम उसी निजी त्यारे से वापस लाई गई, बैंकिंग चैनल से नहीं लाई गई। और बैंकिंग चैनल के बगैर जो रकम एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लाई जाए उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, और उसके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इतलाक होता है, जो कि बहुत ही संगीन जुर्म है और इसकी सजा उम्र कैद है। 12वीं वायलेशन जो की वो बहुत ही मीर साहब अनफॉर्चुनेट है कि उमर फारूक जहूर के पास जब ये सेट फर्रा गोगी साहिबा लेकर गई तो उन्होंने कहा कि जनाब 75 लाख दिरहम में इसका सौदा हुआ है, ये बहुत बड़ी रकम मैं दे रहा हूं, जब तक मैं इसकी तस्दीक नहीं करूंगा कि ये ओरिजिनल है मैं कैसे आपको पेमेंट करूं। तो फर्रा गोगी साहिबा को साथ लेकर वो ये सेट ग्राफ के एक शोरूम पर गए, एक दुकान पर लेकर गए और उनसे तस्दीक चाहिए कि क्या ये वाकई ओरिजिनल है। उन्होंने उसकी जांच परख करके बताया कि हाँ ये ओरिजिनल है, और अगर आपको 5 से 6 मिलियन डॉलर के लगभग ये मिल जाए तो बहुत वारे का सौदा होगा। लेकिन जब उनके नोटिस में ये सेट आया तो उन्होंने बाद में एक खत भिजवा कर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब को आगाह कर दिया था कि आपका बनवाया हुआ तोहफा हमारे पास आया था बिकने के लिए। जब मोहम्मद बिन सलमान को पता चला कि ये तोहफा इमरान खान ने बेच दिया है, जो कि उन्होंने मोहब्बत से बनवा कर वजीर आजम पाकिस्तान को पेश किया था, तो वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने बहुत बुरा मनाया। और आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो एक रिलीफ पैकेज दिया था 6.2 अरब डॉलर का, जिसमें 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कैश डिपॉजिट रखवाया गया था हमारे फॉरेन रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उन्होंने फौरी तौर पर वापस मांग लिए। और 3.2 अरब डॉलर की सहूलत थी हमारे पास मुअख्खर अदायगियों पर तेल की, वो एग्रीमेंट उन्होंने कैंसिल कर दिया और पाकिस्तान के मफाद को शदीद नुकसान पहुंचा, मुआशी मफाद को। या हमारी असेसमेंट के मुताबिक जब ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब डॉलर कम होते हैं तो यहां पर डॉलर 10 रुपए महंगा हो जाता है। 3 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर अचानक कम होने से रुपए की कीमत की जो डिवैल्यूएशन है वो डॉलर के मुकाबले में 25 से 30 रुपए हुई, मतलब 25 से 30 रुपए डॉलर महंगा हुआ। तो आपको याद होगा जब 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान हलफ लिया, थोड़ा याद करें, मेरे PTI के दोस्त भी याद करें, तो उस हलफ के अंदर एक क्लाज है
جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ بطور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مفادات کا ہر صورت میں تحفظ کروں گا اور ہرگز پاکستان کے مفادات کو نقصان نہیں ہونے دوں گا. لیکن انہوں نے یہ تحفہ دبئی فروخت کرنے کے لیے بھجوا کر پاکستان کے معاشی مفاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. تو جو دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی ذاتی گھڑی ہے، تو جناب کیا اب بھی یہ ذاتی گھڑی ہے؟ یہ اچھا، ذاتی گھڑی نہیں ہے سر، یہ یہ 12 پوائنٹس ہو پاکستان گئے کی آپ کے. ناموس کو بیچا گیا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کے ڈگنیٹی کو بیچا گیا ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ 12 آپ نے پوائنٹس جو بتائے تفصیل سے، یہ اچھا ریکارڈ کا حصہ بھی ہو گیا ہے. کئی لوگوں کو تو بس یہ وہ سمجھتے ہیں ایک چھوٹی سی گھڑی ہے جی، بس بازو پہ آتی ہے، اس کو اس جی کی سر. امپورٹنس، اس کی ویلیو، اس کی وہ اقدار، جیسے آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی یہ بہت عظیمت اٹھانی پڑی. تو آپ نے ایک شروع میں کہا میرے سوال کے جواب میں کہ آپ کو سٹوریز کچھ ایسی مل رہی تھیں جو آپ نے بریک نہیں کی کیونکہ اس سے ملک کو بدنامی ہوتی. تو میرے ایک دوست نے یہاں سوال کیا، تو کیا اس آپ کی سٹوری سے ملک کی بدنامی نہیں ہوگی؟ جی نہیں، ملک کی بدنامی میری سٹوری سے نہیں ہوئی بلکہ تحفہ بیچنے سے ہوئی ہے. یہ دیکھیں، یہ اسکردو سے اچھا سوال آیا آن دا وے. اچھا، پہلے انہوں نے تھوڑا ٹویسٹ کیا ہے میری بات کو. میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ میں نے ملک کی بدنامی کی وجہ سے ملک کو سٹوری نقصان ہوگا. بیچی. ملک کے مفاد کو نقصان ہونے کا خطرہ تھا. ڈیفینیٹ اندیشہ تھا. اوکے. تب میں نے وہ سٹوری روک دی تھی، اور سٹوری چھاپنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا کسی بھی قسم کا کہ چلو یہ تو نقصان ہوگا لیکن یہ فائدہ ہو جائے گا. اس طریقے سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. مجھے بتائیں کہ یہ تو وہی سوچ ہے نا کہ جی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی ویلیشن ہوتی ہے، یہ نام بتاؤ ملک بدنام ہوگا. وہ جناب ہم بتائیں گے تو ویلیشن رکے گی. یہ جناب جرم ہو گیا ہے، کسی بڑے بندے نے قتل کر دیا ہے، تو یہ نہ بتاؤ ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی. یہ تو آپ وہی بات کر رہے ہیں جناب. سعودی ولی عہد کا تحفہ بیچنے سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے، اس بات کے بتانے سے ملک کی بدنامی نہیں ہوئی ہے. اچھا. اور اس کو سوری میر صاحب میں کاٹ رہا ہوں بات، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے مانا ہے. اس بات کو انہوں نے شارٹ آرڈر دیا کہ یہ انفارمیشن دے دی جائے. کیا جج بھی آپ کے خیال میں میرے ساتھ ملا ہوا ہے؟ اچھا، آپ کے ساتھ جو کیبنٹ ڈویژن کے آفیسرز ہیں ان کا نام میں بھول گیا ہوں، آپ اکثر لیتے ہیں، انہوں نے کافی. محمد احد. جی محمد احد ان کا نام تھا، ہاں، محمد احد. جن کو تو بعد میں انہوں نے کسی کیس کی جی وجہ سے ٹرانسفر کر دیا گیا. اچھا ہاں وہ ٹرانسفر ہو گیا. اچھا او ایس ڈی شکر ہے نہیں بنے، ورنہ مطلب نہیں، کون سے وہ گریڈ کے ابھی آفیسر تھے؟ ایک اور کہانی بھی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں، آپ سوال کر لیں. وہ کون سے گریڈ کے آفیسر تھے؟ وہ ڈپٹی سیکٹری، یہ 19 گریڈ کا ہوتا ہے 19 غالباً. گریڈ کے تو ہوں گے. اچھا اس میں ایک یہ بھی آیا کہ راتوں رات کچھ ان کے جو تھے ملازم یا آفیسرز کہہ رہے، ان کو کچھ منصیرہ بیسی سے بھی تھے. کتنے نام تھے وہ، کتنے لوگ تھے جن کو اٹھا کے لا کے تو یہ گیم کھیلی گئی، اور اس دن میرے خیال میں چھٹی بھی تھی. نہیں، یہ تو خیر تھوڑا سا میرے خیال میں مرچ مسالہ لگایا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. چھٹی والی بات کہیں سے بھی تصدیق نہیں ہوتی. اور اچھا میر صاحب ہم تو ایک گھڑی کو ڈسکس کر رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ ہم ایک گھڑی کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ گھڑی ابھی نہیں، ابھی تو ہم نے گھڑی ڈسکس نہیں کیا، ہم نے توشہ خانہ چوری ڈسکس کیا. توشہ میں نے خانہ چوری ہاں، ہوا ہے. یہ گھڑی عمران یہ خان نے کہتے ہیں، یہ تو گھڑی عمران بڑی خان گھڑی نے کہتے ہیں، گھڑی ہے جی گھڑی. ہم تو پورا توشہ عمران خانہ خان کہتے کو 4 سال کے دوران جو غیر ملکی دورے کیے، کوئی 200 سے زیادہ تحائف ملے، اور وہ سارے کے سارے اسی صورت میں انہوں نے ریٹین کیے ہیں. نہ تو رپورٹنگ ہوئی ایمبیسیڈر کی، اور نہ تحفہ جمع کروایا گیا توشہ خانہ میں، اور نہ ہی اپریزل ہوئی. وہ اچھا سارے کے سارے اسی طرح کیے گئے ہیں. یہ جو 12 پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں، اس میں ایک دو میں سزائیں بھی آپ نے بتائیں، اور اگر جی اس 12 پوائنٹس کو اکٹھے ملا کے سمجھا جائے قانونی نقطہ نظر سے کہ ان کو سزا، پھر مثال کے طور پہ سزا کتنی ہو سکتی ہے؟ یہ سر بات یہ ہے کہ ان کو جب ملا کر دیکھتے ہیں آپ، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس پر نیب ایکٹ کا سیکشن 4 لاگو ہوتا ہے.
नए एक्ट का सेक्शन 4 यही चीज है कि अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी अरेंजमेंट की जाए जिससे माली बेनिफिट लिया जा सकता हो या और ले लिया जाए। तो ये सवाल ये अगर, हाँ, ये तो एक लंबा सिलसिला है ना। सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की जो सजा है वो उम्र कैद है, अच्छा, इसके अलावा स्मगलिंग है और चोरी है, बदयांती, मिसकंडक्ट, ओपन एंड शट केस है मिसकंडक्ट का। तो नहीं लेकिन मिसकंडक्ट ये की एक तकरीबन मेरे बताएं, ख्याल में 10 साल सजा है, गालबन मैं भूल नहीं रहा तो। नहीं एक बताएं, आप नहीं, हैं, नहीं आप हैं प्राइम मिनिस्टर हाँ, और मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूं, तो आपका तो नाम कहीं बेचने में आ नहीं रहा, कहीं इमरान साहब की इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रही कि ही हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड समवेयर ऑफ सेलिंग और डूइंग दीज थिंग्स। उनका कोई स्टाफ, कोई जुल्फी बुखारी या कोई मोहतरमा बुशरा और जो क्या भी वो क्या क्या कहते उन्होंने, हैं जी। मीर साहब, क्या उन्होंने थाना सेक्रेटरिएट में एफआईआर दर्ज करवाई थी कि ये तोहफा चोरी हो गया है मेरा? नहीं चोरी नहीं हो गया, अपने किसी फिर घर वालों ने, मतलब अपने किसी साथी ने कर दिया, तो वो तो सर, उसमें तो उसको बेनिफिट ऑफ ये डाउट भी है ये भी इमरान खान की ही चाल है कि वो कि भाई इस अपने तरह करूं। ऊपर हाँ आने वाले हर इल्जाम को डाइवर्ट कर देता है दूसरों पर। जिस तरह ये, मतलब है कि बड़ी अजीब मिसाल मैं अपने देने लगा था, मैं नहीं दूंगा इस फोरम पर। मतलब है कि उनके पांव जलने लगते हैं तो वो किसी को भी नीचे दे देते हैं अपने पांव बचाने के लिए। मतलब उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को भी कुर्बान कर देना है, हत्ता एक वक्त आएगा ये अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे। मुझे तो लगता है ऐसा कि अगर बच्चों को कुर्बान करके इनकी गुलखलासी मुमकिन होगी तो ये भी इससे भी नहीं चूकेंगे। मतलब देखें, एक वो शेर है हमारे बड़े काबिल इतराम शायर हैं जफर इकबाल साहब, उनका, झूठ बोला है जफर तो कायम भी रहो, हाँ, आदमी को साहिब किरदार होना साहिब किरदार होना चाहिए। चाहिए। मजे किए हैं, अरबों रुपए कमाए हैं, तो जिम्मेदारी लो ना, डट जा जवान। अच्छा क्यों नहीं अब डट एक जाता? अब इन तोहफों की तफसील पे आते हैं, लेकिन पहले एक आप बताएं कि जब आपकी वालदा को भी इस तरह प्रेशराइज किया गया, तो वो आपको अभी तक तकलीफ तो होती होगी ना कि मेरी वालदा, और फिर बिल्कुल। है, हाँ। अभी अच्छा, तक आपने तो सुनी वो, मीर साहब, आपने इंट्रो में कहा था मेरी वालदा हयात है, अल्लाह करे उनको। अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी, हाँ, मैंने नहीं कहीं नहीं नहीं, देखा, हाँ, सॉरी। नहीं नहीं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी नहीं दे। कहीं मैं, पर ये चला ना सर, कहीं चला था हाँ, ये कोई पता नहीं, ओके फेक खबर, ओके, गलत गलत फेक मैसेज हो। होगा, ठीक है, नहीं नहीं मैं नहीं, माजरत ओके, चलो नहीं नहीं, माशाल्लाह। मैं अच्छा तो खुशकिस्मत अभी हूँ उनकी कि, क्या कैफियत है कि वो आपको क्या कहती है कि भाई बस कर दो, सर, छोड़ दो? सर, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अपनी वालदा की खिदमत का मौका मिल रहा है। और जी आपको को मैं बताऊं कि मैं अपनी वालदा की जितनी मुमकिन हो सकता है उनकी खिदमत करता हूं। उनको मैं काम नहीं करने देता, वो काम करने लगती हैं तो बर्तन भी मैं खुद धोने लग जाता हूँ और माशाल्लाह। दीगर चीजें भी। ऐसा मेरी ये खुशकिस्मती है। और बाकी मैं बताऊं कि मैं एक राजपूत हूँ पीर साहब, और हस्बी नस्बी राजपूत हूँ मैं, राणा महाराणा प्रताप सिंह की औलाद हूं मैं। हमने तो जलालुद्दीन अकबर का मुकाबला किया, हमने अरब से आने वाले कलहड़ों का मुकाबला किया, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हम सिखों के खिलाफ लड़े। अंग्रेजों के खिलाफ मेरे दादा ने थाने पर हमला किया था, 4 गोरे सिपाही मारे गए थे। वो मफरूर भी रहे, फिर पकड़े गए थे, उम्र कैद की उनको सजा हुई, उम्र कैद और फांसी प्लस दोनों की। लेकिन 4 साल बाद पाकिस्तान पार्टीशन हो गई थी तो उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन हमारी जमीनें जब्त कर, हम राजनपुर के जो बड़े फ्यूडल हैं उनके बराबर हमारी जमीनें थी, लेकिन वो सारी जब्त कर ली गई। हमने फिर भी नहीं शिकवा किया, हम इस धरती के बेटे हैं, हम सन ऑफ साइल हैं। हम ये नहीं शिकवा करें हमारी जमीनें छीन ली गई तो हम कोई वो हो गया। मुझसे सलीम साफी साहब ने ही पूछा था कि आप डरे नहीं? मैंने कहा मैं कैसे डरूं, मेरे अंदर राणा प्रताप सिंह का खून है और ये जनरल नियाजी की औलाद है, मैं इससे क्यों खौफ खाऊंगा? मेरी वालदा भी हुई है, वो मुझे शाबाश देती हैं, वो मुझे अच्छा अप्रिशिएट करती हैं कि तुमने जमीर का सौदा नहीं किया। अच्छा, आप भी राना है, वजीर दाखिला भी राना है, पता नहीं वो किस लड़ी के राना है, हाँ, लेकिन राना है दोनों, तो उन्होंने कोई आपको सपोर्ट नहीं दी? वजीर दाखिला भी है, कोई प्रोटेक्शन, कोई इतना बड़ा काम, वो राणा भी साहब तकलीफ से अच्छे, निकले हैं, वो भी बड़े केसेस से निकल के आए यहाँ तक पहुंचे हैं। राणा साहब अच्छे आदमी है, राणा सनाउल्लाह खान
एक जुर्रतमंद इंसान का नाम है, जिससे बड़े बड़े लोग मुखालफिन कांपते हैं। वो एक दहशत का नाम बने हुए हैं, और मतलब दहशत उस तरह उसूल नहीं, का नाम, मतलब बेसिकली उसूल पसंदी का नाम, या एक स्टैंड का नाम है। और मैं अप्रिशिएट करूँ, उन्होंने मुझे टीवी के ऊपर भी कहा कि राना अबरार खालिद को दोनों मैचों में सल्यूट करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनको भी सल्यूट करता हूं, ऐसी बात नहीं। मगर हुकूमत एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि मैं किसी से कोई भीख तो मांगता नहीं हूं, मैं ड्यू फेयर इंसाफ मांगता हूं। मेरे भाई के खिलाफ अभी तक इंतकामी कार्रवाइयां चल रही है। राजनपुर में एक झूठी एफआईआर करवाई गई, एक ही जुर्म में 3 मरतबा एफआईआर हुई है। क्या पाकिस्तान के कानून में कंसेप्ट ही नहीं है कि एक ही जुर्म की एफआईआर 3 मरतबा हुई हो? एक बार एफआईआर हुई, मेरा भाई पेश हो गया जज के सामने, जज ने डिसमिस कर दी, हथकड़ी खुलवा दी, लेकिन फिर वो एफआईआर हो गई, फिर सेशन जज ने वो रिजेक्ट की, फिर एफआईआर हो गई। मतलब कितनी बार एक बंदे के खिलाफ एफआईआर करेंगे? कोई तो हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन हम डटे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई अनड्यू फेवर तो किसी से मांगता नहीं हूं कि राणा साहब मतलब इस तरह से करते। क्या मतलब क्या अगर मुझे इस तरह की बात है तो मैं उनसे कहूंगा कि राणा साहब ये गाड़ी खड़ी कर दे, मैं इसको इस्तेमाल करता हूं, मैं भी आपका भाई हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उनसे कोई फेवर लूं। लेकिन अच्छा, अब बात राणा ये, साहब आते हैं, अब हाँ, आते हैं नहीं, एक बात मैं जी बता जी दूं जी। कि हिंदुस्तान में जो 50 के लगभग राजपूत स्टेट्स थी, और उनके रिवाल की पता है बड़ी वजह क्या है? राजपूत कभी मुतहद नहीं हो सकते, क्योंकि उनके दिमाग में एक खनास है कि दूसरे से मदद मैं मांग रहा हूं तो वो समझेगा कि ये कमजोर पड़ रहा है। ठीक है ना सर? सही सही हम सही। हम कभी भी दूसरे से मदद मांगेंगे, राजपूत से नहीं मांगेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम कभी पीछे से वार नहीं करते, हम पता कर वार करते हैं। हम कभी औरत के ऊपर वार नहीं करते, हम छल कपट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए मेरी भी कुछ लिमिटेशन है। अगर राणा सनाउल्लाह की कुछ लिमिटेशन है तो मेरी भी लिमिटेशन है। अच्छा, ये बताएं कि ये क्वेश्चन भी आ गया हमारे दोस्त का यहाँ यूके से ही। वो कह रहे हैं कि आपके इलाके में गुर्बत बहुत है और वडेराइज्म बहुत है, इसमें क्या हकीकत है? और दूसरी मेरी तरफ से भी ये है कि वहाँ आपके इलाके में तो वो बड़ा इलाका गैर भी है, वहाँ तो बड़े मफरूर भी हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे वो छापे भी पड़ते हैं कुछ। हाँ, मफरूर हैं। वो इस वजह से हैं कि ये जो फ्यूडल हैं, इनका जो जुल्म सितम है, जो छोटू गैंग की बात कर रहे हैं, हाँ छोटू जी। गैंग कौन है? मैं आपको बता देता हूं ना उन दोस्तों को। मैं वहां का रहने वाला हूं, मैंने रिपोर्टिंग की है उसके ऊपर। मैंने अच्छा। पिछले दिनों डॉक्टर शीरी मजारी से आंखों में आंखें डालकर सवाल किया था। उनकी बेटी से पूछा, जो बहुत बड़ी इंसानी हकूक की चैंपियन बनती है, हम्म। कि 50 साल से चल रहा है ये मामला। सही। सरदार आशिक हुसैन मजारी की जमीनों के लैंड रिफॉर्म्स में आई थी, और इन्होंने वो आज तक मुजारिन का हक मारा हुआ है। ये पिछले दिनों की बात है, मैंने वीडियो शेयर की थी कि पुलिस ने जाकर गरीबों के घरों के ऊपर बिल्डोजर फिरवा दिए। हम्म। ठीक है ना सर? आग लगा दी जाकर। इसका भांजा है, इसकी बहन का बेटा है हमजा, डॉक्टर शीरी मजारी की बहन का बेटा है, सॉरी भाई का बेटा है, भतीजा है उसका, वली मजारी का बेटा है हमजा। वली मजारी मर गया है। वो हमजा साथ था पुलिस के, लोगों के घरों में आग लगाएगी। वो छोटू गैंग नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? ये जो इंसानी हकूक की चैंपियन नजर आती है ना, रंग बिरंगे बाल करके, ये उन्हीं गरीबों की कमाई के कलर हैं ये, जो इनके बालों में नजर आते हैं। जब इस तरीके से ये फ्यूडल करेंगे लोगों के साथ, तो छोटू गैंग ही तो बनेगी, और क्या बनेगा सर? उनका क्या कसूर है कि आप मतलब है कि उनको उनकी जमीनों से भी भगा दें, और तो बच्चों को 3-3 महीने तक जेल के अकुबत खाने में, थानों में रखेंगे। इन्हीं शीरी मजारी साहिबा ने रखवाया। इनके भाई जो जिसकी डेथ हुई है, वली मजारी ने, इन लोगों को 4-4 महीने राजनपुर के जिले के मुख्तलिफ थानों के अकुबत खानों में औरतों, मर्दों, बच्चों समेत कैद किए रखा।
वहां तो इंसानी हकूक अप्लाई नहीं होते इनके नजदीक। यहाँ इस्लामाबाद में तो बहुत बड़ी ये इंसानी हकूक की चैंपियन है, यूएन के दौरे करती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो कहा गया कि फलाना तकादा पूरा नहीं हुआ, फलाना कानूनी तकादा पूरा नहीं हुआ। मैं इनसे पूछता हूं कि ये जो इच्छा बिरादरी है, ये दूसरी बिरादरियां हैं जिनका आपने हक मारा हुआ है, इनके बीवी बच्चों औरतों छोटे छोटे बच्चों को जब गिरफ्तार करके अकूबत खानों में पुलिस ने डाला था, तो कौन कौन से कानूनी तकादे पूरे हुए थे? ये जवाब नहीं दे सकती है इन चीजों का। तो गुर्बत इसी वजह से है कि ये जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये फ्यूडल इन्होंने पाले हुए हैं, इनके पालतू हैं। लोगों से डरती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, कि अवाम से डरती है ये रियासत। ये समझते हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया, ये फ्यूडल ना पाले, तो लोग डेमोक्रेसी के जरिए इंतकाम लेंगे हमसे। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। ये बात हमें पता हो ना हो, लेकिन इन लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता है मीर साहब। इस वजह से ये सारे फ्यूडल इन्होंने पाले हुए हैं। एक भाई को ये नून लीग में भेजते हैं, दूसरे भाई को पीपल पार्टी में भेजते हैं, तीसरे भाई को ये पीटीआई में भेजते हैं, ताकि ये हेजबनी कायम रहे, किसी की हुकूमत आए तो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। अच्छा, अब हम आते हैं जी, लोगों को तो एक घड़ी घड़ी वो छोटा सा वो दरमियान में नहीं, उन दोस्तों ने जो सवाल किया था ना, उनको एक और बात भी मैं बता दूं कि ये दोस्त ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जहांगीर तरीन के खिलाफ कंपेन चलाते रहते हैं। अच्छी बात है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, सब 2 दफा चलाएं, 3 दफा चलाएं, एक बार नहीं। लेकिन ये डॉक्टर शीरी मजारी जो आपकी लीडर है, ये अब भी जहांगीर तरीन से पैसे लेती है। सबूत है मेरे पास इसके। उन्हीं जिन जमीनों पर इसने कब्जा किया हुआ है, वो जमीनें इन्होंने जहांगीर तरीन की कंपनी जमालदीन वाली शुगर मिल्स एंड कारपोरेशन को ठीके पर दी हुई हैं, और हर 3 महीने बाद चेक मिलता है जहांगीर तरीन से इसको। तो पैसा जहांगीर तरीन का और सियासत इमरान खान की नहीं, तो वो बिजनेस है ना, किसी के साथ बिजनेस भी हो सकता है। सर, बिजनेस किसी के साथ तो हो सकता है, लेकिन अपने दुश्मन के साथ कैसे हो सकता है? सर, इंडिया के साथ हम ट्रेड नहीं करते। नहीं, इंडिया के साथ ट्रेड हम उस वक्त करते हैं जब हमारे हालात ठीक होते हैं। अभी तो हम नहीं कर रहे। अभी कैबिनेट में मामला गया था कि प्याज बहुत महंगे हैं पाकिस्तान में, आज भी 200 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो कैबिनेट ने फैसला किया था कि जब तक ये सूरत हाल कश्मीर की मौजूद है, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। हमने ट्रेड उस वक्त किया जब हालात ठीक थे, हम ताल्लुकात ठीक थे दोनों मुल्कों के। कांग्रेस की हुकूमत के दौरान हमने ट्रेड की थी। अब तो ये हमारी कैबिनेट का रीसेंट फैसला है सर। इनको भी तो देखे ना, जब जहांगीर तरीन इनके साथ थे, हालात ठीक थे, उस वक्त की लीज चल रही होगी, तो फिर लीज तो नहीं तोड़ी होगी ना, चलने दें कारोबार। सर, रिन्यू हुई है, अभी रिन्यू हुई है। अच्छा, वो लीज, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अभी रिन्यू हुए हैं वो। अच्छा, देखें मेरी बात सुने, गुजारे ये है मीर साहब, ये पाकिस्तान के फ्यूडल्स की जो सियासत है ना, ये लोगों को दिखाने के लिए मुखालफतें और दुश्मनियां होती हैं। ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं, ये आपस में दुश्मन नहीं होते हैं। मैं ये पॉइंट इलोबरेट कर रहा था। अच्छा, मेरा सवाल अब ये है कि इन चीजों की तफसील थोड़ी सी बता दें कि किस चीज की क्या मालियत है, एक लोग रिफ्रेशर भी हो जाएगा लोगों के लिए। साथ में फिर मेरा वो जो पहला सवाल था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों ने अगर ली हुई है तो उनको क्यों नहीं आप प्रोब कर रहे, या उन्होंने अगर ली है तो उन्होंने कोई ज़ाब्ता नहीं तोड़ा या कुछ है? ये दोनों जवाब मुझे दें पहले, इन चीजों की मालियत और ये कितनी है चीजें। मेरे साहब, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब तो काफी हद तक पहले भी दे चुका हूं कि मेरे नजदीक तो अहमियत की हामिल स्टोरी वो थी कि अगर किसी ने तोहफे बेचे हैं तो वो सिर्फ इमरान खान ने बेचे हैं। बाकियों के बारे में ऐसा कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि उन्होंने तोहफे बेचे हो। तो जो ये सवाल है, और बाकी ये है कि जो उन्होंने तोहफे सस्ते लिए, उसका नैब कोर्ट 2 पिंडी में रेफरेंस चल रहा है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ये मामला सब जुडिस है। उसका जल्द फैसला आ जाएगा। पीटीआई वालों तो नहीं ना? जी सर,
انہوں نے بیچے تو نہیں نا کہ؟ نہیں بیچے اچھا نہیں. جو وہ ان کے خلاف ایک ریفرنس چل رہا ہے کہ جی یہ 25% پیمنٹ کرنی تھی ریٹرننگ فیس, لیکن جو سید یوسف رضا گیلانی نے ایز اے پرائم منسٹر اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو ریڈیوس کر کے 15% کر دیا تھا. تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ فوجداری کیس نہیں ہے. اگر ثابت بھی ہو جائے تو وہ فوجداری کیس نہیں ہے, وہ سول کیس ہے. اور میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کم پیسے پے کیے گئے وہ پیسے مانگ لے, کورٹ کوئی فائن ڈال دے 10%, ہاں اس کا وہ جو 20%. جی ہاں ٹھیک ہے. لیکن وہ سب سر وہ سب جوڈس ہے, اس کے اوپر مزید میں کیا رپورٹیں کر سکتا ہوں. ہاں یا تو مجھے پی ٹی آئی والے یہ شواہد دے کہ وہ جج بکا ہوا ہے, میں جج کے خلاف خبر چھاپ دوں گا. مطلب کتنی بار خبر چھاپی جائے. آخر میرے ساتھ مجھے کمنٹ کرنے دیں. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں, تو میں نے کچھ لوگوں نے مجھے آ کر بھی پریس کلب میں یہ کہا تھا, میں نے ان سے یہی کہا تھا جناب ہم جرنلسٹ ہیں, ہم سیاستدان نہیں ہیں, ہم کورٹ نہیں ہیں, میں کوئی ریوڑیاں نہیں بانٹ رہا کہ سب کو برابر برابر دوں. میرے پاس ایک ہی سیاستدان کی اگر 4 سٹوریاں آئیں گی نا, میں ان کو اوپر نیچے رپورٹ کروں گا, ان کو چھاپوں گا, ان کو براڈ کاسٹ کروں گا. یہ نہیں کروں گا کہ ایک خبر میں چھاپ دوں, 3 روک دوں کہ اب ایک خبر میں نواز شریف کی پہلے چھاپوں, پھر زرداری صاحب کی چھاپوں, پھر فلاں کی چھاپوں, پھر فلاں کی چھاپوں, اور اس کے بعد عمران خان کی دوسری خبر چھاپوں گا. صحافت یہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ جو سورس آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مرتے دم تک صحافی نہیں بتاتے, لیکن یہ سورس کیا انہی کے اندر سے ہے یا کوئی سرکاری سورس ہے؟ سر یہ سرکاری آفیسر ہوتے ہیں. اصل میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارے سورس وہ لوگ بنتے ہیں جو کہ وہ ہوتے ہیں ان کو بھی دین مان جھاگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی صحافی کے تھرو یہ بات نکل آئے. ایگریوڈ پرسن ہوتے ہیں کسی معاملے میں, ایگریوڈ پارٹیز ہوتی ہیں, وہی آ کر کنٹیکٹ کرتی ہیں ہمیں. جس صحافی پر یہ اعتماد ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ خبر بیچے گا نہیں, یہ ڈرے گا نہیں, یہ جھکے گا نہیں, اس کو وہ سٹوری دیتے ہیں. تو ایگریوڈ پرسن ہوتے ہیں سر. آپ نے کلاشن کوف اور گاڑی کا کہا, وہ کہاں گئی, وہ آپ کو کیسے پتا ہے, اور وہ آپ کو پکڑائی کیوں نہیں دے رہی ابھی تک؟ اچھا سر ایسے ہے کہ 2020 میں جب میں نے آر ٹی آئی بھیجی تھی سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو, اور پھر پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل چلی, فیصلہ میرے حق میں ہوا, پھر امپلیمنٹیشن کے لیے جدوجہد شروع ہوئی تھی, تو اس دوران عمران خان کانشس ہو گئے. وہ یوں ہے کہ یہ شاہزیب خان صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا تھا ڈاکومنٹ دکھا کر کہ ایک خاص ٹائم کے بعد 2020 کے بعد جتنے بھی غیر ملکی دورے کیے ہیں عمران خان نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جی فارن منسٹر کو اتنے مہنگے مہنگے گفٹ ملے, فلانے منسٹر جو ان کے وفد میں شامل تھا اس کو بھی گفٹ ملے, فلانے آفیسر کو, ایون کے گریڈ 20 والے کو بھی بڑے بڑے تحفے ملے, لیکن عمران خان کے نام کے کسی تحفے کا ادراج نہیں ہے. تو یہ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ معاملہ ریٹرننگ 2 نمبر ریٹرننگ والا نہیں چل سکتا. ہوا یہ کہ پرائم منسٹر کو ملنے والے تحفوں کا ادراج ہی نہیں کیا گیا, جیسے تحفے ملے ہی نہ ہوں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے وفد میں شامل فارن منسٹر کو بھی مہنگے تحائف ملے ہوں, فارن سیکرٹری کو بھی مہنگے تحائف ملے ہوں, ملٹری سیکرٹری کو بھی مہنگے تحائف ملے ہوں, کامرس منسٹر کو بھی مہنگے تحائف ملے ہوں, لیکن پرائم منسٹر کو اس بادشاہ نے یا اس صدر مملکت نے کچھ نہ دیا ہو؟ کیا یہ بات ماننے میں آ سکتی ہے؟ تو ہوا یہی ہے کہ یہ تحفے بغیر اندراج کیے بیچ دیے جاتے رہے. نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ ملے ہیں, اور آپ ازمپشن پہ کر رہے ہیں کہ ملے ہوں گے؟ نہیں ہمارے پاس سورسز کی سر, سورسز کی بتائی ہوئی انفارمیشنز ہیں کہ ایک دوست ملک سے بلٹ پروف گاڑی ملی تھی, اس کا کوئی اندراج نہیں. ایک گاڑی ملی تھی دوسرے دوست ملک سے جو نان بلٹ پروف تھی, وہ بلٹ پروف گاڑی پاک آرمی کو دے دی ہو, کہیں وہاں پہ ضرورت ہو. نہیں سر, پاک آرمی کو دی ہوتی تو پھر آن دی ریکارڈ دی ہوتی نا. ایک دوست ملک نے دی تھی سر, ایک دوست ملک نے دی تھی نان بلٹ پروف گاڑی, وہ پول میں بھیج دی گئی, اس کا اندراج موجود ہے. لیکن جو بلٹ پروف گاڑی دی گئی اس کا کوئی اندراج موجود نہیں ہے, وہ کہاں گئی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. سونے کی کلاشن کوف کے اتفاق سے پریزنٹیشن کے وقت کی پکچر آ گئی, لیکن اس کا اندراج نہیں ہے. نہیں ہو سکتا ویسے ان کے ساتھ پکچر نہیں ہو سکتا, ویسے اچھی لگی ہو چیز پکچر بنانے کے لیے کہ یار میں اس کے ساتھ پکچر ہو جائے. نہیں مطلب ہے کہ کسی ملک کے صدر کے ساتھ کھڑے ہو کر اس طرح کا جوکنگ
तरीका हो सकता है भला? नहीं सर, देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपके घर आता हूँ, मुझे कुछ चीज अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ इसके साथ मैं एक पिक्चर बना लूं जी, कोई सर यादगार आपने गुजारिश पड़ी हो। ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं हैं, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं करता होता ये काम। नहीं, अच्छा, उस वक्त मतलब है कि पीटीआई की तरफ से वो पिक्चर फ्लोट की गई कि ये ऑनर दिया गया इमरान खान को, ओके मगर उसका ओके। इदराज नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से एक और जो तोहफों की किस्में हैं कई पीटीआई वालों की कि सारी बातें देखे ना, सही भी तो नहीं होती, वो जल्दी में कर देते हैं गलत, बाद में कुछ और निकलता है, तो उन पे कैसे ये तो रिलाई फिर कर। ये तो फिर वो भुगतेंगे ना सर। तो हाँ, इसी तरह एक और भी ताइफ है, एक और नौयत के, वो हैं अंदरून मुल्क ताइफ, जो इमरान खान बतौर वजीर आजम मुख्तलिफ जगहों के दौरे करते थे पाकिस्तान में, मतलब फाटा गए जब, तो फाटा काफी दफा गए, तो उनको पुरानी एंटीक बंदूकें बतौर तोहफा पेश की गई। अच्छा, इसी तरह करतारपुर गए थे तो सिख कम्युनिटी ने उनको एक सोने का लोटा पेश किया गया था, और उसके हवाले से मतलब एथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि वो पिंडी की वो सराफा बाजार से उसकी कॉपी बनवा कर रखी गई, उसके बाद और लोटे ही सोने का लोटे हो लोटा, गए इनके पास। हाँ, वो कर लिया गया। उसकी वजह पता है क्या है? कापियां की कॉपी बनवा के भी तोहफे रखेंगे, उनका एग्जामिनेशन होने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि रूल्स के मुताबिक जो गैर मुल्की दौरों के दौरान मिलने वाले तहफ हैं वो रिटेन किए जा सकते हैं। जो अंदरूनी मुल्क तहफ होते हैं वो रिटेन करने का ऑप्शन ही नहीं है, वो हर सूरत में तोशाखाना में रखने होते हैं। ओके तो ओके। उनकी कॉपीज बनवाई गई, फिर ये अच्छा किया अच्छा, गया। सर वो मैं रेप्लिका पे आऊंगा। ये जब तोशा खाना में जमा होगी चीज, छोड़ दें इमरान साहब को, इस वक्त कोई चोरी हुई इस चीज को छोड़ दें। जी हमें ये भी तो देखना है कि हमें लोगों को ये समझाना है कि तोशा खाना में चीजें पड़ी हुई है, तो वो पड़ी पड़ी जंग लग जाएंगी, या उनका कोई फायदा भी कौम को हो कि कहीं ऑक्शन कर दें, कुछ कर दे, कुछ बेचना भी तो है ना उनको, उससे कुछ। जी। जी। उसका मीर साहब ऐसे होता है कि 2017 तक हर 2 साल बाद ऑक्शन होता आया, रूल्स के मुताबिक हर 2 साल बाद ऑक्शन होता है। ये ओके। अलग बात है कि एक पाकिस्तान में एक और यहाँ पर मौजूद है रूल्स में चीज, जिसको लाहौर के एक वकील साहब ने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, और उसका केस चल रहा है। इसकी वजह से 2017 के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। वो रूल ये बनाए गए कि जब एक्शन होगा तो सिविल सरकारी मुलाजमीन और मिलिट्री सरकारी मुलाजमीन एक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, इसके अलावा कोई एक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक। ये मतलब एक कदम बड़ी अजीबो गरीब है कि हर शहरी एक्शन में हिस्सा ले सके। अब इंडिया में एक्शन होते हैं तो हर शहरी हिस्सा ले सकता है, अमेरिका में एक्शन होते हैं ताइफ तो हर शहरी हिस्सा ले सकता है एक्शन में, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये रूल है कि सिर्फ सिविल एंड मिलिट्री सरकारी मुलाजमीन एक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो लाहौर के एक वकील साहब ने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, इसी वजह से 2017 तक तो एक्शन होते आए हैं हर 2 साल बाद, लेकिन 2017 के बाद नहीं हुए, एक्शन रुका हुआ है, और केस का फैसला होगा तो एक्शन हो जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा, ये सवाल आया है मेरे दोस्त का, बड़ा मासूमाना सवाल है, जाहिर है जवाब तो डॉक्यूमेंटेड ही होता है आपके पास। वो कह रहे हैं कि ये जो सोर्स हैं आपको की ध्यान हटाने के लिए कुछ करते होंगे, आपको कैसे यकीन है कि वो सच होता है? जाहिर है वो हाँ, डॉक्यूमेंटेशन देते होंगे। देखें मेरे मासूम दोस्त है, मासूमाना सवाल है मासूमाना सवाल, जनाब। मैंने उनकी लेकिन है बड़े समझदार हैं ये। खिदमत में अर्ज यह है कि मैंने सोर्स की बात के ऊपर खबर नहीं छापी, बल्कि 23 नवंबर 2020 को मैंने एक आरटीआई रिक्वेस्ट तैयार की जो कि सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को आरटीआई, भिजवाई। राइट टू इंफॉर्मेशन राइट है जी। टू इंफॉर्मेशन, जी। राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत मैंने सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को भिजवाई, जिसमें 5 सवाल मौजूद थे। वो 5 सवाल ये थे कि 18 अगस्त 2018 जिस दिन इमरान खान ने एज ए वजीर आजम हलफ लिया था, उससे लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक, इस अरसे में गैर मुल्की दौरों के दौरान इमरान खान को कितने तहफ मिले। सवाल नंबर 2, उन तहफ में से कितने तहफ इमरान खान ने तोशा खाना में जमा करवाए और कितने तहफ उन्होंने एज पर रूल रिटेन करके घर ले गए। सवाल नंबर 3 ये था कि जो तहफ इमरान खान को मिले हैं और उन्हें रिटेन किए हैं, उनकी डिटेल स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन बताई जाए। इन केस ऑफ व्हीकल इंजन नंबर चेसिस नंबर बताया जाए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ईएमआई नंबर बताया जाए। सवाल नंबर 4 मेरा यह था कि जो तहफ इमरान खान ने एज पर रूल रिटेन किए हैं, उनके बदले में रिटेनिंग फी कितनी जमा करवाई गई है।
सवाल नंबर 5 बड़ा अहम और सख्त था मीर साहब के, जो पेमेंट हुई है इमरान खान की तरफ से वो किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है, अकाउंट टाइटल, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और ब्रांच का नाम बताया जाए। ये मैंने 5 कैश भी तो दे सकते हैं ना सर, कोई नहीं, कैश नहीं मुखय्यद होता कैश दे देते हैं सर। गवर्नमेंट पेमेंट कैश नहीं होती, वो फिर किसी से मंजूरी के बाद होती है। एक फोरम पर कोई ना कोई फोरम पर जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी, अप्रूवल नहीं मिलेगी, यूजुअल ट्रांजैक्शन में कैश नहीं है। कैश हो तो सकती है, मतलब है कैबिनेट मंजूर कर दे, अप्रूवल दे दे फॉर वन टाइम कि ये आप कैश स्टेट बैंक के जरिए जमा करा सकते हैं, इस तरीके से होती है, वरना यूजुअल प्रैक्टिस में चेक का और पे ऑर्डर है। अच्छा, ये मैंने पूछा था। तो राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत हर डिपार्टमेंट का, हर सरकारी डिपार्टमेंट का हेड पाबंद है कि 10 दिन के अंदर मांगी गई इंफॉर्मेशन फराहम कर दे। मगर मुझे सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिर मैंने अपील की पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि ऑटोनोमस बॉडी है। ये वही है जिनको ट्रांसफर कर दिया गया था, उनकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उनकी नहीं, ये पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। अच्छा, जो अच्छा, ये उनके सेक्रेटरी ने नहीं दी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये मैंने अपील की तो 37 दिनों के बाद इन्होंने मेरे हक में फैसला दिया और ऑर्डर किया कि मांगी गई इंफॉर्मेशन 7 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दी जाए। फिर भी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। उसके बाद इस दौरान मैंने 3 मरतबा इंप्लीमेंटेशन की एप्लीकेशन दी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को, और हर मरतबा उन्होंने एक शार्ट ऑर्डर भेजा कि ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए। मगर आखिर में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने खत लेकर डिनाई कर दिया कि हम नहीं देते इंफॉर्मेशन। बाकायदा ये बदमाशी की, डिनाई कर दिया कि हम इंफॉर्मेशन नहीं देते। फिर मैंने उसी एक्ट के तहत, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 की शेक नंबर 20 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन सबमिट करवाई। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में ही हो सकती है। उसके ऊपर जून 2021 में शोकाज नोटिस जारी हुआ। डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को 8 जुलाई को हियरिंग के लिए बुलाया गया। उनको वो आए तो हियरिंग, सेक्रेटरी नहीं आया था, डिप्टी सेक्रेटरी आया था, और उन्होंने आकर एक और धोखाधड़ी की थी। वो धोखाधड़ी बड़ी दिलचस्प है मीर साहब। मैं क्योंकि थोड़ा हो गया लेट, 11:30 बजे थी हियरिंग, वो 11:25 पर पहुंच गया डिप्टी सेक्रेटरी, और कमिश्नर साहब से कहा कि, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे, उनसे कहा कि मैं मांगी गई इंफॉर्मेशन ले आया हूं, सर ये ले ले मुझसे और मेरी हाजिरी लगा ले, मुझे पीएम सेक्रेटरीट में मीटिंग में जाना है। और उन्होंने कहा इंफॉर्मेशन ले आया, तो ठीक है। एक बंद लिफाफा व्हाइट कलर का वो कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दे दिया और हाजिरी लगवा ली और चला गया। जब मैं वहां पर पहुंचा, क्योंकि हियरिंग तो थी 11:30 बजे, मैं कोई 10 मिनट लेट पहुंचा। मैंने पहुंचा तो मुझे कहा गया कि मुबारक हो, आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। मैंने कहा जबरदस्त, दिखाएं, दे मुझे। उन्होंने मुझे वो बंद शुदा लिफाफा रखा हुआ था उसी तरह, वो मुझे दे दिया। मैंने खोला तो उसमें सर इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट थे। सवाल गंदम जवाब चन्ना था उसमें। अच्छा, मैंने सर फिर ये किया कि उसी वक्त ही वहां बैठकर एप्लीकेशन लिखी कि डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने रिसीव किया है पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन को, इस पर कार्रवाई की जाए। अब हो ये रहा था कि कमीशन ने मुझे कहा कि हम 3 कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उन्होंने मुझे कहा कि हम बैठेंगे तीनों कमिश्नर, डेलीब्रेट करेंगे इसको, और हम जो भी पेनल्टी बनती है एज पर लॉ सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी को हम पेनल्टी सुनाएंगे। वो ये है अगस्त की बात, जब मैं उनसे दोबारा मिला था, अगस्त 2021। तो ये सजा होने जा रही थी उन दोनों को। तो फिर उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया, अटॉर्नी जनरल के जरिए एक रिट पिटीशन फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इस्तदा की गई कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का सबका फैसला जो है उसको कल अदम करार दिया जाए। स्टे भी मांगा गया, स्टे उनको नहीं मिला था, लेकिन पिटीशन अब तक सुनी जा रही है। और दरमियान में हमने फिर दरखास्त दी तो हमें हाई कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया था कि हमने स्टे नहीं किया है और फैसले पर अमल दरामद किया जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत तब्दील हो गई है
مجھے اب بھی وہ انفارمیشن آفیشلی نہیں ملی ہے میر صاحب، اس حکومت نے بھی پرووائڈ نہیں کی ہے. تو وہ جو دوست میرے سوال کر رہے تھے جناب، ایسا نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ اتنا عرصہ میں نے رگڑا کھایا، میں نے دھمکیاں، وکٹمائزیشن، تمام چیزیں برداشت کی صرف اتھینٹک نیوز کے لیے. میں چاہتا تو اسی دن نومبر 2020 میں جب سورس نے مجھے بتایا تھا، میں چھاپ سکتا تھا. مجھے نکال دیا گیا، میں کسی اور دوست کو دے سکتا تھا. یہ بات نہیں ہے کہ خبر چھپ نہ سکتی ہو، میں آج بھی 10 جگہوں پر خبر چھپوا سکتا ہوں، چلوا سکتا ہوں، لیکن میں صرف ایتھینٹسٹی کے پیچھے بھاگتا رہا میر صاحب. اچھا، ایک دوست کا سوال آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ عمران کو ان چیزوں کی چوری کی کیا ضرورت ہے، وہ ایک بیٹ کا آکشن کرتا تو بڑے پیسے مل جاتے. کیوں نہیں کیا؟ کرتا، یہ نہ کرتا. لیکن ویسے میں اصل بات بتا دوں. پتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ ان کی جو حکومت آئی نا، آپ کو یاد ہوگا ان کے دعوے، میڈیا بیانات، یہ ورلڈ کپ جیتنے کے چکر میں تھے نا، ورلڈ کپ کا ریکارڈ بنانے کے چکر میں تھے. انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ جی ہم نے چین کا دورہ کیا ہے، جیب سے ٹکٹیں خریدی ہیں جہاز کی. یاد ہے آپ کو؟ اچھا، وہ یہ کر رہے تھے، اپنے آپ کو ایماندار ثابت کر رہے تھے، اس لیے یہ گھٹیا کام کر دیا. ان کے خیال میں یہ چوری نہیں تھی، یہ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زیادہ سنگین جرم ہے. یہ اس طریقے سے کر رہے تھے، اپنے آپ کو بہت ایماندار. اس کا مطلب ہے آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ انہیں دیتے ہیں کہ وہ یہ چوری سمجھ کے نہیں انہوں نے کیا، تو پھر تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے گا نا، یہ چوری نہیں ہے تو. نہیں، وہ سمجھ رہے تھے شاید کہ یہ چوری نہیں ہے. ہاں وہی نا، وہ اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کی انوسینس میں ہوگا نا یہ کام. میر صاحب ایسا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں قابل تلافی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ناقابل تلافی. جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ جرم ہے ناقابل تلافی، لہذا اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیسے مل سکتا ہے؟ منی لانڈرنگ میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیسے ملے گا؟ اسمگلنگ میں کیسے ملے گا؟ کیونکہ اس میں تو منی لانڈرنگ بھی انوالو ہے. لیکن آپ کے فورم سے میں آپ کو ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں ٹائم بھی ہو گیا ہے کافی. میر صاحب میری بات ہوئی ہے اس بندے عمر فاروق ظہور کو، میں نے ایک دن فون کیا، میں نے اس کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا کہ یار آپ پاکستان میں پلے بڑے ہو، آپ کا بیس ہے پاکستان، آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ امیر آدمی ہو. پہلی بات تو یہ ہے وہ غریب آدمی نہیں ہے. 75 لاکھ درہم کا نقصان بھی وہ برداشت کرتا. میں نے اس کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ والنٹری یہ چیزیں، یہ جو تحائف تھے، یہ پاکستان کے خزانے میں واپس جمع کروا دیں. وہ تیار نہیں ہوا. میں نے اسے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ یا گورنمنٹ آپ کو پے کرے، یا پاکستانی شہری مل کر کوئی اس سے کنٹریبیوشن اکٹھا کریں، چندہ اکٹھا کریں، کیونکہ ہمارا پرائیڈ وہاں پر پڑا ہے اور ہمارے اوپر ماتھے پر یہ سیاہ داغ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر موجود پاکستانیوں اور بیرون ملک موجود پاکستانیوں کو اس پر سوچنا چاہیے، عمر فاروق ظہور سے رابطہ کرنا چاہیے. اگر اس کو پیمنٹ کرنی پڑے تو میں بے روزگار ہوتے ہوئے اپنی حیثیت مطابق حصہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہی پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیے جائیں، اور وہ جو پرائیڈ ہے وہ چیز آ جائے گی رانا صاحب، وہ چیز آ جائے گی. آپ کی اچھی خواہش ہے، بہت اچھی بات ہے. جرم تو ہو گیا نا سر، دیکھیں نا، ایک قتل ہوتا ہے تو اس کو آپ اس کا دے دیتے ہیں وہ، تو اس کے بعد لیکن یہ تو نہیں کہ جرم آپ نے نہیں کیا نا، جرم تو ہوا. اچھا، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ ابھی اس انٹرویو میں بھی کہا کہ آپ نے خط لکھا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ خط کہیں آپ نے کہیں شو کر دیا ہے؟ کیونکہ آپ خود اس میں کہہ رہے تھے اس انٹرویو میں کہ 5th جنریشن وار کے یہ نمبر 1 ہے. تو یہ اس کے اوپر آپ نے سائن تو نہیں کیا؟ اس کے اندر یہ لکھ دیں آپ کی طرف سے کہ مجھے یہ دے دیں، وہ دے دیں، اور کہیں جی یہ رانا صاحب نے ہمیں خط لکھا ہے، یہ اس کو 2 نمبری کر دیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ نہیں سر، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ امید ہے کہ کل ایک قومی اخبار میں وہ خط چھپ جائے گا. ہاں، یہ خط آنا چاہیے آپ کا نا، وہ کہیں وہ ہم نے اس کا صحیح طریقے سے بالکل کیئرفلی تدارک کیا ہوا ہے کہ وہ اس کا اوریجنل اس وقت اوپن ہوگا جب پہلے یہ قومی اخبار میں چھپ چکا ہوگا. لہذا پھر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی بھیج چکے ہیں آپ آلریڈی عمران صاحب کو؟ جی میں عمران خان کو بھیج چکا ہوں.
कब कितने दिन हुए हैं भेजा आपने? ये मैंने कल भिजवाया था। अभी तक मिला तो नहीं होगा ना? चले अच्छा है, वरना वो कहेंगे कि जी नहीं, अब जब हमने उन्होंने ये हमें कुछ मांगा है तो हमने इनकार किया, तो फिर उन्होंने दूसरा खत शो कर दिया जी, फिर क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप ऐसा इतने नहीं सादे हैं वो, मतलब नहीं आपको नहीं 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 नहीं, यूं यूं है कि पहले ये अखबार में छपेगा और उसके बाद हम ओपन करेंगे ओरिजिनल कॉपी को, सेम टू सेम। तो उससे फिर जो है ना, ये दो नंबरी नहीं कर सकते। वो दो नंबरी चंद घंटों की होती है, अगर करते भी हैं कि एक जाली फॉर्मेट बना लें और उसमें अपनी मर्जी का कंटेंट डाल दें, लेकिन ओरिजिनल तो मौजूद है ना, होगा हर जगह पर मौजूद होगा, लिहाजा मेरे नहीं ख्याल के ये कर सकेंगे। अच्छा, मेरे जो दोस्त थे ना स्कर्दू से, उन्होंने जो सवाल किया था उस वक्त वो ऑफलाइन हो गए थे, कि जिन्होंने कहा था जी बैट बेच देते, तो आपने कहा कि क्यों नहीं फिर बेचा। उनको मैं एक और भी इंफॉर्मेशन उनके लिए दे रहा हूँ, अभी वो देख भी रहे हैं, और उन्होंने आपका शुक्रिया भी अदा किया है कि बड़े अच्छे आपने जो बात दी है, प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा है। और भी काफी सारे मैं शो कर रहा था साथ साथ ना, लोगों के दोस्तों के सवालात इस पे। जी जी। उसी उन्हीं दोस्त को और दूसरों को भी मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर इमरान साहब का इतना वो होता कैरेक्टर माशाल्लाह, तो वो जुए के पैसे से अपनी पार्टी का कर्जा ना उतारते 2002 में, उधार ले जी लेते अपने सही साले है। से, उधार ले लेते, ऐसा कहते नहीं उधार है। दे दो। लेकिन उन्होंने उस जुए के पैसे को अपना हक समझ के लिया कि ये मेरा भी इसमें मेरी कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे वो पैसे दीजिए। दूसरा दूसरा उन्होंने ये किया कि 1989 में कैप्टन थे वो टीम के, और उन्होंने इंतखाब आलम को कहा कि सेमीफाइनल तक $20,000 की जो रकम जमा हो चुकी थी ना, कि वो लगा दें, अब जुए पे फाइनल हमारा श्रीलंका के साथ है, हम जीतेंगे। एक पाकिस्तानी टीम का कैप्टन जुआ खेल रहा है वो, और वो अपने मैनेजर को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये देखे ना, एक बंदे की नेचर में जब गलत काम करने, तो ये नहीं होता कि वो जी ये मेरे साथ करते ऐसा ही है। मेरे साथ ऐसा ही है कि भुट्टो साहब ने काफी सारे सिविल अफसरान को करप्शन पर डिसमिस किया था, आपको याद होगा। वो कह रहे जी, उसमें वो हमारे दोस्त नहीं, हमारे भाई हैं जी, भाई भी हैं, लेकिन चले दोस्त प्यार से कह रहे हैं। अच्छा जी सर, क्या कह रहे थे आप? आपको याद होगा कि भुट्टो साहब ने काफी सारे सिविल ऑफिसर्स को करप्शन साबित होने पर डिसमिस किया था। इनके वालिद साहब भी थे उसमें। जी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये 70s में इमरान खान की क्रिकेट में 2 साल का गैप है, लेट 70s में। ठीक। वो यूं है कि कैरी पैकर सर्कस एक सीरीज थी, उसका नाम दिया गया था। कैरी वो पैकर जी। ये सॉरी आईसीसी ने उसके ऊपर पाबंदी आयद की थी। बैन हो गए थे जी और जी। जो लोग खेल उसमें खेले थे, क्योंकि उसमें पैसा बहुत ज्यादा था, जी जो लोग खेले थे उनके ऊपर पाबंदियां लगी थी, और इमरान खान भी उनमें शामिल थे। 2 साल इनकी क्रिकेट में इनके अरूज था उस वक्त, एनर्जेटिक, मतलब नौजवानी जो होती है, मशहूर होने से पहले ही क्रिकेटर कुछ दिखा रहा होता है, जब मशहूर होता है तो उसके बाद तो खास परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आती। वो अरूज था इनका, जिसकी वजह से इनकी विकेटें भी टेस्ट क्रिकेट में कम हुई हैं, कि वो 2 साल ये नहीं खेल सके थे, सिर्फ पैसे की खातिर एक इलीगल सीरीज खेले थे। ये भी लोगों के जहन में रहना चाहिए। लालच होती है जी, लालच होती है। और अच्छा। ये जो आपको याद आ गया मुझे कि ये जो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिला, ये उसी कैरी पैकर की इनकम इन्होंने शो की अपने एसेट्स में, तो तब इनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिला था। ये लेटर वो लेकर आए थे वो भी कैरी लेटर था पैकर। ना, वो आप वो प्रॉब करते ना जी, वो तो स्टेटमेंट्स तो नहीं है ना, वो तो लेटर है। वो तो बैंक लेटर है। की ब्रांचेस बंद भी होगी, वो तो बंद भी होगी। हाँ। एनीवे, अब आप तो इसको सम अप करते हैं, मतलब ये बताएं। ये जो आपकी और मेरी बात मुशर्रका है कि इमरान खान की पैसा कमजोरी है, ये सारे दोस्तों को मानना चाहिए कि शुरू से ये पैसे के मामले में कमजोर वाकई हुए हैं। कि अगर ये 2 साल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते, तो ये इनकी विकेटें दुनिया के उस वक्त जब रिटायर हो रहे थे तो दुनिया में सबसे ज्यादा होती। मगर जो इनका अरूज का दौर था, विकेट विकेट टेकिंग दौर था क्रिकेट का, नहीं, वो ये हाँ कुछ और पैसे भी के लिए, खेलते थे, इसी वजह से इनको जो ना पट्टा चढ़ जाता था, ये कुछ और भी हाँ, खेलते होते थे उन दिनों में। पैसे के लिए कैरी पैकर सर्कस वो जो सीरीज थी, वो खेली तो 2 साल इनकी क्रिकेट में कैप आ गया। इसका से वादे होता है पैसे जुए में लगवाना और बॉल टेम्परिंग करना, इससे मतलब वादे होता है कि पैसा इमरान खान की हमेशा कमजोरी रहा।
अच्छा, ये राणा साधु प्रताप नहीं है, जितने जी, जितने ये साधु बनते हैं, दरवेश बनते हैं, ये दरवेश नहीं है, हाँ, बल्कि दिखावे के दरवेश हैं। दिखावे के, एग्री एग्री। अब तो वो काफी एक्सपोज भी हो चुके हैं। अच्छा, ये ऐसा कि आप सम अप करते हैं तो ये बताएं कि अभी जब ये केस मेरे ख्याल में सेशन कोर्ट में चला गया ना, ये केस डिस्ट्रिक्ट हाँ, चला सेशन, गया। तो हाँ। आपको उसमें पार्टी बनने की कोई हुई है अभी, या अभी आप मतलब नहीं 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 है नहीं, उसमें? माजरत, मेरे साथ ऐसा नहीं, माजरत, बिल्कुल। मुझे नैब वालों ने इनवाइट किया था जी, और मुझसे उन्होंने ब्रीफिंग ली थी ओके। कंसल्टेशन के लिए। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सॉरी, ना तो मैं अच्छा, पार्टी यानी कि बनूंगा। उन्होंने पार्टी बनने का कहा लेकिन आपने नहीं? हाँ, नहीं तो उन्होंने जब मुझे रिक्वेस्ट आप की सोर्स थी। नहीं, आप सोर्स ही आप हैं, तो वो सोर्स किसी और किसी सर जगह पे केस का सर फैसला हमारी कुछ हो गया, आप ये बाद में ना कहे जी नहीं, केस में मेरी इन्फॉर्मेशन पे सही तरह बात नहीं की गई, फिर? सर हमारी भी लिमिटेशन है एज ए जर्नलिस्ट। मैंने डीजी नैब रावलपिंडी को कहा कि सर ऐसा नहीं है, मैं पार्टी नहीं बन सकता और ना ही विटनेस बन सकता हूं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। अगर आप समझते हैं कि मुझे इस केस को कंक्लूड करने के लिए पार्टी बनना चाहिए, तो फिर जी, मुझे आप एक रिटन लेटर लिखेंगे। मैं जी, वो लेटर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब के सामने रखूंगा। अप्रूवल लेंगे वहां उन से? हाँ, उनके विल के साथ, उनकी एडवाइस के साथ मैं फिर स्टेटमेंट दूंगा या पार्टी बनूंगा। क्योंकि तो जब फैसला मैं जाती तौर पर कर रहा हूं, तो कल को कोई मेरे ऊपर मुश्किल कुछ भी होता है हाँ, वो तो वो साथ मेरा में साथ आपके नहीं जा दे, रहे, वो नहीं वो साथ मेरे दे साथ रहे। नहीं खड़े तो होंगे। अगर मैं नहीं, उन तो हाँ, उन्होंने अगर क्या मैं कहा, उनकी लिखेंगे विल खत? के साथ जाऊंगा तो वो मेरे साथ खड़े होंगे। ठीक हो गया, तो उन्होंने क्या हाँ। कहा, लिखेंगे खत वो? नहीं, उन्होंने कहा कि फिर हम देखेंगे कि जरूरत पेश आती है या नहीं आती। अच्छा, उस वक्त फिर ठीक ठीक हो हाँ, गया, उस हाँ वक्त सही है। देखेंगे। तो मैंने आप उनको स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा मैं ब्रीफिंग देता हूं आपको, इस केस के रमूज और औकाफ जो हैं, जो निजाकते हैं, जो अहम पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको मतलब एक बात मैं बताऊं कि जो मैं आपको बताया कि 3 अप्रेजल व्हाइट पेपर पर थी, वो उनको दुरुस्त मानकर बैठे हुए थे नैब के हुकाम। अच्छा, ये मैंने उनको बताया कि जनाब ये जाली है, ये फ्रॉड है। फिर ओके। डीजी साहब की आंखें खुल गई, तो यानी कि उन्होंने आप मुझे उन्हें कहा कि फीड तो करते रहेंगे ना साथ साथ के, जो जो अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा, मिलती रहेगी? फिर उन्होंने मुझे कहा कि फिर ये बताएं कि ओरिजिनल अप्रेजल कैसी होती है। मैंने ओके, कहा मैं आपको बताऊंगा। हाँ, वो मैंने अपने एक सोर्स के जरिए कस्टम से जो रोज की अप्रेजल हो रही होती हैं, 2 अप्रेजल शीट मैंने ओरिजिनल मंगवाई, जी, और वो अगले हफ्ते जाकर मैंने डीजी नैब को हवाले की जी, ओरिजिनल। मैंने कहा सर ये प्रिंटेड होती है और इसके ऊपर सिग्नेचर, स्टैंप, डेट, टाइम और इतने खाने होते हैं, इतनी सारी डिटेल वाजे वाजे लिखी जाती है, इंग्रेडिएंट निकाले जाते हैं एक पीस में से कि उस फर्क करे कि कोई चीज है ऐसी जिसमें लकड़ी भी है, दूसरी तो लकड़ी का वजन और प्राइस अलग निकाली जाती है, तांबे का, लोहे का, सिल्वर का, ये अलग अलग मतलब चीजों को असेस किया जाता है, ये तरीकाकार होता है। और उन्होंने बतौर एविडेंस वो मेरी फ्राहम करदा दोनों अप्रेजल, ओरिजिनल अप्रेजल जो कस्टम की थी, वो फाइल में शामिल कर ली हैं और कोर्ट में भी पेश करेंगे। वो उन्होंने मुझे थैंक्स भी किया। तो मतलब अच्छा, मेरी जितनी रहनुमाई हो सकती है वो तो मैं उनको दूंगा। अच्छा, अच्छा। अभी आप कह रहे हैं कि 40% भी नहीं है इन्फॉर्मेशन आपको जी मिली, तो जी जी, अ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो जो बाकी इन्फॉर्मेशन की आप पीछे लगे हुए हैं, लेट्स से केस के दौरान दौरान आपको मिलती रहती है आपको, तो आप फिर नैब को देते रहेंगे कि भाई इस तरह परसू करें आप? देखिए, नैब को देने का मैं कोई इन्फॉर्मर तो नहीं हूं नैब का। नहीं, मैं उसको मैं उसको मीडिया पर ला रहा हूं। मीडिया पर लाएंगे, अच्छा, अच्छा। नैब ने ये किया है, मुझे पता चला है कि मेरे नाम का फिल्टर लगाया हुआ है गूगल पर। हम्म। तो जो भी चीज, आपका ये प्रोग्राम भी उन तक पहुंच जाएगा। और मैं तो नहीं कहीं मेरा पहुंचूंगा? नाम, मेरा मेरा मैंने नाम कहा मेरे चाहे मैं, मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएंगे वो? नहीं नहीं, आपके पीछे क्यों पड़ेंगे? अच्छा, तो ठीक आपके पीछे है। नहीं पड़ेंगे। तो मतलब मेरा नाम चाहे वॉइस के जरिए जाए इंटरनेट पर या रिटर्न शेप में, उनके फिल्टर में वो चीज आ जाती है और वो उसको ओके, देखते हैं। तो मतलब मेरे पास जो भी नई इंफॉर्मेशन आएगी मैं उसको ब्रॉडकास्ट करूंगा या पब्लिश करूंगा और उसके बाद उनको दूंगा। पहले हम साफ ही पहले कभी भी इदारे को नहीं देते होते, ये हमारा असूल है। अच्छा, अच्छा। ये जो ऑडियो लीक्स भी हो रही है, ये जी वो मुर्शद वाली बात, और मुर्शद ये कर दो जी, मुर्शद मैं कर दूंगा, तो ये आपकी स्टोरी को स्ट्रेंथन कर रही है ना? जी, बहुत सारी चीजें आ रही हैं।
बहुत सारी चीजें साबित हो रही हैं कि मैं दुरुस्त था और उस वक्त की हुकूमत का, पीटीआई का प्रोपेगेंडा गलत था। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, अब मान तो गए हैं। अब सिर्फ ये कहते हैं जी कि हमने कानून की खिलाफवर्जी नहीं की। मैंने आपको कानून की खिलाफवर्जियां बता दी हैं और बहुत सारी साबित हो चुकी हैं, बहुत सारी साबित हो जाएगी, मैं यकीन के साथ कहता हूँ। ठीक। आप इस वो ये तो चले केस का काफी हद तक हमने मतलब इतना इसको निचोड़ा है आज के, मेरे ख्याल में आपके अगर मुख्तलिफ चैनल्स पे 4 प्रोग्राम हुए होंगे तो आज हमने एक ही प्रोग्राम में सारी कुछ बातें लोगों जी, तक लाई। बिल्कुल सही आपका करें तो आप। शुक्रिया सर, लेकिन आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान के सियासतदानों से क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ये इकोनॉमी या कुछ ये करप्शन, इनमें जो है ना मतलब इकोनॉमी में बेहतरी आए और करप्शन में कमी आए, और ये जो झूठ और ग्लोबल माफिया और ये जो मतलब हमने नई नस्ल को खराब कर दिया, आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज में बैठा हुआ पाकिस्तानी वो क्या कर सकता है, और आपका मैसेज क्या है? क्योंकि आप एक मतलब एक बेहतरीन साफी है, मैं आपको नहीं जानता हूं इतना, मैं क्यों इतनी तारीफें खामखा करूं कि कल को आप मेरे खिलाफ ही कोई स्टोरी छाप रहे हो तो मैं को नहीं जी राना साहब तो बड़े करप्ट है। मैं अल्लाह माफी, मैं वैसे मजाक कर रहा हूं कि कहने का मकसद ये है कि आप जैसे जो है इतने मतलब वो क्या कहते हैं ना, जहाद, इसको स्ट्रगल कहते हैं, जहाद है, और इस जहाद में आपने जो नाम कमाया है वो आपको जरूरी नहीं है कि डिविडेंड अभी मिले, और जरूरी नहीं है कि आपके उनका मदावा अभी हो, ये होगा कभी, लेकिन तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा कि ये इट वाज राना खालिद इब्रार कि जिन्होंने असल ये स्टोरी ब्रेक की, और उसके बाद लोगों ने आगे पीछे बड़े चैनल्स थे, उनके पास प्लेटफॉर्म्स थे। आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आपके पास, आपके साथ अवाम की आवाज है, और लोग आपको सोशल मीडिया पे भी बुलाते हैं, हर जगह बुलाते हैं। देखिए मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मैंने तो जी, बिल्कुल। अचानक मैंने कहा नहीं यार, मैं काफी दिन से सोच रहा था, तो मुझे फिर वो आया एक मैसेज आपके इंटरव्यू का, वकार सत्ती साहब ने वो आपका एक क्लिप, तो मैंने कहा नहीं अब तो मैं आपको मतलब जरूर ऑन बोर्ड दूंगा। तो आपका क्या मैसेज है आपकी सर? मेहरबानी है। आपका मैसेज क्या है आवाम के लिए? देखें मीर साहब, मेरा यही मैसेज है कि हम गलतियां हर जगह पर, हमारे पाकिस्तान के सियासी और सरकारी पूरे निजाम में गलतियां मौजूद हैं, और हम आज ठीक करना चाहें तो रातों रात ठीक नहीं हो सकती हैं। ये ग्रेजुअली होती हैं। 2018 में जब गवर्नमेंट तब्दील हुई थी, मई 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट गई थी, उस वक्त मईशत काफी हद तक ठीक चल रही थी, महंगाई बहुत कम थी और लोग कम आमदनी में भी अच्छा गुजारा कर रहे थे, लोग सेविंग कर रहे थे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक 4 साल में जो एक मुआशी तबाही हुई है, सी पैक हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका था, उसको ज़ाय कर दिया पिछली हुकूमत ने। ये सी पैक अथॉरिटी बनाई गई थी और उस पापा जोन्स वाले जनरल को बिठाया गया था सिर्फ इस असाइनमेंट के तहत के सी पैक बंद हो गया। इशू ये है कि पाकिस्तान को हमेशा डॉलर की मजबूरी रही है, डॉलर की कमी का शिकार है इस वक्त पाकिस्तान। हमारी इंपोर्ट्स जो है वो 80 अरब डॉलर से बढ़ चुकी है और एक्सपोर्ट हमारी वहीं की वहीं खड़ी है। 30 अरब डॉलर का गैप है जी जिसके लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। और मैं ये कुएं में भी नहीं धकेलने की कोशिश करूंगा कि ये भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है, वो इधर पैसा भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लाट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, उनका भाई, उनका कजन ही कब्जा कर लेता है, फिर वो कब्जा नहीं छुड़ाया जा सकता। ये भी मैं मतलब एक कुएं में भी नहीं धकेलना चाहता, लेकिन मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर जो अपनी सेविंग है वो यूके में, अमेरिका में, यूरोप में रखने की बजाय वो पाकिस्तान के बैंकों में रखें, पाकिस्तान भिजवा कर। मुख्तलिफ सही। स्कीमें भी हैं, वो रोशन डिजिटल अकाउंट अच्छा, एक अच्छी स्कीम है मेरे ख्याल में, जिसमें मुनाफा भी है। तो हम झोली फैलाने, भीख मांगने, शर्तें मानने, जो है ना, आलमी मालियाती इदारों की शर्तें मानने से बच जाएंगे, क्योंकि जब हम अपनी डॉलर की जरूरत खुद ही इस तरीके से पूरी कर लेंगे तो मईशत आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकती है। जब तक ये डॉलर का बहरान मौजूद है, इसाक डार भी करिश्मा नहीं दिखा सकता।
इस्हाक डार भी इंसान है, इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट को फेवरेबल हालात मिलते हैं तो कुछ कर पाता है, अगर फेवरेबल हालात ना हो तो कुछ नहीं कर पाता। मेरी डार साहब से बात हुई थी जब वो लंदन में थे, तो वो कुछ खुद भी इतने पुरुमीद नहीं थे। मैंने उनसे यही पूछा था कि मैंने कहा डार साहब उस वक्त तो हालात काफी फेवरेबल मिल गए थे और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, और मियां नवाज शरीफ ने एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको हैंड ओवर पूरा मतलब एक खुला छोड़ा हुआ था, जो चाहे आप कर सकते थे। अब हो सकता है हालात वैसे ना हों, आपको मुकम्मल मतलब इख्तियार भी ना हो, और क्या ख्याल है कि कर लेंगे? तो वो इतने खुद भी पुरुमीद नहीं थे, क्योंकि टफ हालात है, बहुत ज्यादा टफ हालात भाई है। बहुत करके थे ना जी वो, ये न्याजी वाहिद मीर साहब, वाहिद एक बाइज्जत तरीका ये है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे बातें का झूमर हैं, इनको पार्लियामेंट में होना चाहिए, बेहतरीन बिल्कुल होना चाहिए। ये हुकूमत भी एक अमेंडमेंट लाने जा रही है, वोट देने का अख्तियार भी होना चाहिए। अगर अपना पैसा किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में, किसी रियल स्टेट में या स्टॉक एक्सचेंज में बेशक ना लगाए, बैंक में रखवा दे पाकिस्तान में, तो ये जो डॉलर की मोहताजी है, ये जो लकीरें निकालते हैं नाक से हम, इससे जान छूट जाएगी। बड़ी वर्ष शर्तें होती हैं मीर साहब, ऐसी घिनौनी शर्तें होती हैं कि वो उस वजीर खजाना को भी लग रहा होता है मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूं, लेकिन वो फिर भी मजबूर होता है, कर देता है दस्तखत। ये शौकत तरीन साहब की जो स्टेटमेंट थी, इसने कितना नुकसान पहुंचाया, ये जो ऑडियो लीक्स हुई थी? सर देखें, मैं एक फर्क बताऊं, ऐसी कोई स्टेटमेंट आज तक असद उमर ने नहीं दी है, हालांकि वो भी वजीर खजाना रहा है। शौकत तरीन ने ये स्टेटमेंट दी है क्योंकि वो बैंकर है, उसको पता ही नहीं कि पाकिस्तान का मफाद क्या है। ये इतनी एक घटिया किस्म की स्टेटमेंट थी, जो मतलब अपने घर में सींध लगाने वाली बात है, अपनी ही कश्ती में सुराख करने वाली बात है। कोई ऐसा नहीं करता होता, ना ही कोई सोच सकता है, आज तक किसी दूसरे मुल्क में कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह भी किया जा सकता है यार, कि IMF को मौका दो कि जी आपका तो दी हुई शराइत पूरी हो नहीं पाएंगी इस हुकूमत से, लिहाजा ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मतलब ऐसा भी कोई करता है? ऐसा नहीं होता सर। अपोजिशन का मतलब ये होता है कि वो सपोर्टिव होती है, वो तनकीद भी ऐसे होती है। मैं अर्ज करूं तनकीद पे की एक मैं एग्जांपल दे दूं, वो तनकीद भी ऐसे होती है जैसे हम शेव करते हैं, हालांकि ब्लेड के आगे जो भी चीज आए उसको काट देता है, मगर शेव जब करते हैं तो खूबसूरत चेहरा सामने आता है। तनकीद की मिसाल हमेशा ऐसे होती है, अपोजिशन का एक रोल होता है, अपोजिशन सिस्टम का हिस्सा होती है, आउट ऑफ सिस्टम कभी नहीं होती अपोजिशन। अपोजिशन इसलिए तनकीद करती है कि हुकूमत गलत कर रही है, नंबर एक। सही। अगर गलत नहीं कर रही तो इससे मजीद बेहतर हो सकता था, वो नहीं किया हुकूमत ने। तनकीद सिर्फ दो टाइप की ऐसे होती है, या तो हुकूमत ने गलत डिसीजन किया है, या इससे बेहतर डिसीजन भी हो सकता था, वो क्यों नहीं किया। वो प्रेशराइज करती है अपोजिशन हुकूमत को कि ये करो, ये सबसे बेहतर डिसीजन होगा। अच्छा ये बताएं कि दोस्तों ने ये भी मैसेज किए कि आपको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन क्या दी है कि नहीं, या आपने मांगी है कि नहीं। एक बात, दूसरी बात ये है कि आपको थ्रेट्स तो आ रही है सोशल मीडिया से आगे पीछे पे, जैसे अकबर एस बाबर साहब को उन्होंने लालच दी थी कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाए, कुछ बन जाए, तो आपको क्या PTI की हुकूमत ने निकलवाने के अलावा कुछ ऐसा नहीं कुछ ऑफर किया कि यार ये आप इधर आ जाए उधर आ जाए? जी मैं बताता हूँ आपको। पहले सवाल का तो ये जवाब है कि मुझे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने सिक्योरिटी ऑफर की, लेकिन मैंने उनसे खुद ही नहीं ली। देखिए मीर साहब, मैं ग्रास रूट का बंदा हूँ, सिक्योरिटी लेकर बंदा कार्टून नजर आता है। मैं मोटर बाइक के ऊपर मूव करता हूँ, मैं आगे भी पुलिस की मोबाइल और पीछे भी पुलिस की, दरमियान में बंदा मोटरसाइकिल पर जा नहीं रहा है, राणा तो अच्छा साहब, लगता देखिए राणा साहब, आप आपका जज्बा अपनी जगह मान लिया, लेकिन होता क्या है। है, नहीं होता क्या है कि जब कुछ हादसा खुदा ना खास्ता हो जाए ना छोटा मोटा, फिर बंदा कहता है जी मुझे सिक्योरिटी दे, तो पहले क्यों ना ले लें आप? नहीं वो सही कह रहे हैं आप। मुझे रेंजर की सिक्योरिटी भी राना सनाउल्लाह साहब ने ऑफर की और पुलिस की भी की, लेकिन मैंने उनको माजरत कर ली। तो बाकी ये है कि जो कब्र में लिखी है ना रात, वो बाहर नहीं हो सकती, जो बाहर लिखी है वो कब्र में नहीं होगी,
हो सकती है, ये मेरा इस पर बिलीव है। अच्छा, दूसरे सवाल का तो जवाब आप बताएं। हाँ, दूसरा ये है कि ये मैं, हाँ, वो रह गई थी बात, आपने अच्छा याद दिला दिया कि जब तौहीन अदालत की मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के खिलाफ, और शोकॉज नोटिस पर हेयरिंग हुई, तो उसके बाद जब उनको सजा होने वाली थी तो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन का एक दिन मुझे फोन आया। ये है जुलाई की बात है, जुलाई 2021 की, उसकी आखिरी तारीखें थी गालबन। तो मुझे उनका फोन आया सरकारी फोन से। मेरे वैसे जानने वाले थे क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन सेक्रेटरी थे जब, या कॉमर्स सेक्रेटरी थे, तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता था और वो मुझे खबरों के हवाले से कोऑपरेट भी करते रहे थे। उन्होंने कहा कि यार मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ, आप मेरे ऑफिस चाय का एक कप पीते। मैंने कहा ठीक है, शुक्र है, मैं आ जाता हूँ। तो अहमद नवाज सुखेरा थे उस वक्त। तो मैं चला गया अगले दिन उनके ऑफिस, और उन्होंने चाय शाय का काफी सारा इंतजाम किया हुआ था, चाय शाय पी ली। तो उसके बाद मुझे कहते हैं कि यार ऐसा है कि कल मुझे बुलाया गया था पीएम ऑफिस, वहां पर मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम आजम खान ने कहा हाँ। है, प्राइम मिनिस्टर भी उस मौके पर मौजूद थे, उनका है कि ये तोशा खाना का मामला एट एनी कास्ट खत्म। तो आप मेरे छोटे भाई हो, मैं हमेशा आपके साथ कोऑपरेट करता रहा हूं। मैंने कहा कोऑपरेट आप स्टोरी खबर के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में करते हैं, मैं आज तक आपको किसी चपड़ासी का तबादला करने का काम भी नहीं बताया था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो आप मेरे छोटे भाई हो, आप ऐसा करो कि ये विथड्रा कर लो सारी एप्लीकेशन अपनी, और आप जो कहोगे मैं आपको दिलवा। तो मैंने सुखेरा साहब को कहा कि गुजारिश ये है, ठीक है आप बड़े भाई हो, आप भी मेरी एक बात मानो, आप अभी फाइल मंगवाओ इमरान खान के ताइफ की, मुझे फोटो कॉपी करा के ऑफ द रिकॉर्ड दे दो। आपको पता है मैं सोर्स नहीं बताऊंगा, आपका नाम नहीं आएगा सामने, मुझे आप फोटो कॉपी दे दो ऑफ द रिकॉर्ड, मैं जाकर विथड्रा कर लेता हूँ, अभी बल्क कलेक्ट कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर तक को पता है कि फाइल मेरी कस्टडी में है, अगर मैंने दे दी तो ये तो बड़ा मसला हो सकता है। मैंने कहा देखें, आप जब ये नहीं कर सकते तो फिर मैं कैसे विथड्रा कर सकता हूँ। तो वहीं पर बात खत्म हो गई और मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया था। और उसके बाद फिर एक तो ये है कि मेरी शोहरत इस्लामाबाद में काफी खराब है मेरे तक, कि सरकारी ऑफिसर या यानी ये चाय सियासतदान पीने के बाद भी आप नहीं मानते बात लोगों की? किसी को जुर्रत तक नहीं हो सकती कि डायरेक्टली मुझे कुछ ऑफर कर। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि किसी सरकारी ऑफिसर को, चाहे बड़े से बड़ा ऑफिसर ही क्यों ना हो, वो जुर्रत नहीं करता। अगर कभी कोई ऑफर करने की कोशिश करता है तो दरमियान में 3-3 चैनल बनाते हैं, मेरे दोस्तों को ढूंढते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने रिफ्यूज कर दिया था और फिर मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो बाकी मौजूदा सूरत हाल को आप जानते हैं। अच्छा, आप जॉब्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं? अगर चले अभी ये नहीं है जॉब, चले निकाले गए हैं दो जगह से और फिर केसेस भी बन रहे हैं आपके भाई पे, आप जेर अताब हैं, तो फिर भी आप जॉब्स तो अप्लाई करें ना मैं जॉब एज ए। अप्लाई करता हूँ, मैं जी। करता हूँ, लेकिन अच्छा। यूं है कि पीटीआई के लोग भी मीडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिव हैं। हर मीडिया हाउस की एडमन में कोई ना कोई इनका बंदा मौजूद होता है, और इसके अलावा यूं है, इसलिए इन्फ्लुएंसिव है कि अभी भी 2 सूबाई हुकूमतें पीटीआई के पास हैं, और उनके बड़ा एडवर्टीजमेंट का बिजनेस होता है, जो मीडिया के इदारों को एक फाइनेंशियल सहूलत मिली हुई है, उसके जरिए वो इन्फ्लुएंस करते हैं और मुझे जॉब नहीं कहीं पर करने दे अच्छा, रहे। आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं कोई? पहले बनाया था, लेकिन मेरे ख्याल में वो उस चला लें तो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। उस पे भी तो गुजारा हो जाता है कुछ ना कुछ तो, मतलब वो तजर्बा कामयाब नहीं हुआ मीर साहब, उसमें रेवेन्यू कम था और काम बहुत करना पड़ता था वो, क्योंकि मैंने इकॉनमी न्यूज के नाम से शुरू किया था, तो वो उसमें डॉक्यूमेंट दिखाने, तो वो प्रोडक्शन बड़ी मुश्किल थी, तो अभी मैंने फिलहाल वो नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, चले। लोग दोस्त आप ये भी कह रहे हैं जी कि आपको सलाम, कि आपने इतना अहम केस मेहरबानी, निकाला। आपके सारे दोस्तों को मैं सलाम करता हूँ। और तो एक आपने तो ये वक्त साहब जो काफी दिया टाइम है हो गया है। राना साहब, आपने जो वक्त दिया ना आज, ये तारीखी है हमारे लिए, बहुत एजाज है कि हमने आपका इंटरव्यू किया है और लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि सहाफत, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, वो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, कि सहाफत अगर असल तरीके से की जाए तो बहुत जो है ना नोबल ये जो है प्रोफेशन है बहुत, बिल्कुल। और इसको उसी तरीके से करे इंसान। अच्छा, ये दोस्त भी मैसेजेस अभी तक कर रहे हैं, तो इन दोस्तों की तरफ से भी आपको जनाब सुर्ख सलाम, और अपनी काविशों को जारी रखें।
اصل چیز ہے کہ آپ کی ڈگنیٹی قائم رہے. آپ کو مالی جو ہے نا دشواریاں آ سکتی ہیں، لیکن آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کے ساتھ منسلک ہے آپ کا شعبہ. آپ سے زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے آپ کا شعبہ. یہ آپ تک ہے کہ آپ نے صحافت کو کتنا پاک صاف رکھنا ہے، اور اس کو یہ جو لفافہ ازم سے باہر لانا ہے نا، کیونکہ کچھ لفافہ ازم بھی پھیلا ہوا ہے نا. آپ تو لوگ اپنے یوٹیوبر بلا کے تو ان سے جو یہ آپ کی صحافت میں جو مائنز کھڑے کیے جا رہے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک ہیں آگے کے لیے. یہ بہت خطرناک ہوں گے کہ وہ کل کو یہ جب یہ غلط بولا کریں گے نا، تو لوگوں کا دماغ یہی لوگ خراب کریں گے. اور وہ ہو رہا ہے، وہ ایک نرسری لگی بھی ہے. تو میں پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں جی ایک آخری نوٹ اس سے ہٹ کر، کیونکہ یہ دسمبر ہے اور وہ بھی 27 دسمبر کی بہت قاتل شام تھی، جب پاکستان کی ایک بہت بڑی لیڈر کو جان سے مار دیا گیا ہمارے سامنے. ہم بے بس آنسوں کے ساتھ روتے رہے. دعا کرتے ہیں کہ پھر کبھی ایسا نہ ہو. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے مجھے بھی عبدیدہ کر دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ رہے گا. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد. جزاک اللہ رانا صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا.